good afternoon to all the participants present here and the ones which are present online. I'm Dr. Suniti Dutt and I'm a research assistant here in the Department of Media Engineering. And today's topic is emerging media for the efficient academic administration. So before beginning with this particular topic, I would like to ask you a very, very simple question. What do you do at the place of your work? If I can get a response from the online participants as well as from the participants present here. A very basic question, what do you do at the place of your work? क्या करते हैं आप? हम टीचर हैं तो लेक्चर आप टीचर हैं तो आप नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, जो हम में है वो हम उनको समझाना चाहते हैं। और क्या करते हैं? और कुछ नहीं करते, जाते हैं, पढ़ाते हैं, आ जाते हैं। एकेडमिक वर्क भी रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन सर कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सर? ओवरऑल इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट कैसे हो, डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या छोटी छोटी चीजें देखते हैं? इंक्लूडिंग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, ठीक है, या अदर एक्टिविटीज हाँ हैं, जी। उनके रहने का एंड मतलब फ्रॉम द वाटर सप्लाई टू ईच एंड एवरीथिंग सभी कुछ देखना है एज ए फैकल्टी मेंबर्स। आपको कुछ को ज्यादा मिला होता है, कुछ को कम, वो अलग थिंग्स है, लेकिन डेवलपमेंट तो सारा ही करना है। राइट, तो आपने हर एक एस्पेक्ट देखना है जो भी आपके स्टूडेंट टीचिंग से रिलेटेड है, प्लस स्टूडेंट्स के like whatever they are coming from, whatever fees they are paying and whatever things are going to be done. So basically these things जिसको आप टेक्निकली आप एडमिनिस्ट्रेशन बुला रहे हो, these things are something which are apart from your normal duties, because normal duties तो आपकी क्या है? क्लास में जाना है, लेक्चर लेना है, उसकी ग्रेडिंग करनी है, उसको असाइनमेंट चेक करनी है, homework देना है, and that's it. These are your normal activities. But then those activities which takes you away from the daily mundane responsibilities, these are actually the administrative aspects of your education sectors. And these administrative aspects cannot be overlooked because इनके बिना आपका educational institute नहीं चल सकता है. So today this particular topic is all about how to get that efficiency in academic management, and that too with the help of the emerging media. तो इसमें हम सबसे पहले we'll be studying that what actually is your academic administration. If we just look at the technical definition of the term academic administration, it is actually the process where we integrate the human and the material resources. So these human and material resources, these are made available to the teachers so that they can teach efficiently and they can help in running educational institution. For example, आप लोगों के case में we are talking of higher educational institutes, how these can be run in an efficient manner. So now these are two terms. One is the term efficient and the other term is effective. So can anybody tell what is the difference between the term efficient and effective? दो टर्म्स हैं, बहुत सिंपल टर्म्स हैं. वन इज एफिशिएंट, वन इज इफेक्टिव. आवर टॉपिक इज एफिशिएंट एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन. यस, एनीबॉडी फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स आल्सो. क्या लगता है आपको कि क्या फर्क होगा एफिशिएंसी में और इफेक्टिवनेस में? और आउटपुट विद लेसर इनपुट, वो एफिशिएंसी है. आउटपुट अपॉन ओके, फिर इफेक्टिवनेस क्या है सर? अचीविंग द डिजायर्ड गोल. आपके इंस्टीट्यूट ने whatever your institute has set a level of targets for you to be achieved, आप वो टारगेट्स तो अचीव करेंगे ही करेंगे, बट कैसे अचीव करेंगे, आउटपुट आप कितने कम समय में या कितने कम रिसोर्सेज यूज करके करेंगे, दैट इज योर एफिशिएंसी. तो काम तो सबको करना है, काम एक्स पर्सन भी करता है, वाई पर्सन भी करता है. कभी हम सोचते हैं कि एक बंदे का काम बहुत ही जल्दी हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्या टेक्निक उसने यूज किया होगा कि उसका काम बहुत जल्दी हो गया. वी ऑल टीच विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस. हम लोग लगे रहते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है. यार मैंने उतने समय में एक छोटी सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, मेरे कलीग ने उतने ही समय में बहुत ही ब्यूटीफुल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई, ये कैसे हो गया? तो टुडे वील बी सीइंग द डिफरेंसेस अमंग्स दीज and we'll be seeing how to achieve efficient academic administration. So academic administration की definition. Objectives of the academic administration, बहुत सारे objectives होते हैं आपके academic administration के. To provide proper education to the students. Proper education का मतलब है that we need to provide the right kind of education by the right type of educators. That means right kind of education, आपका curriculum इसमें involved है. That means you have to provide what is relevant in today's scenario
And by the right kind of educators, that means educators, you people, your teaching should also be improved by sufficient number of trainings. आप भी up to date होने चाहिए आज के ज़माने में. So this is providing proper education to the students. To ensure adequate utilization of all the resources. When we talk of all the resources, then we talk of all the resources such as the human resources, the time resources, and the actual material resources which are present in our institution. That means we have to ensure that we are adequately utilizing all the three different components. The human resources, that means the three stakeholders, the students, the teachers, and in दोनों को join करने वाला your administration, right? The material resources, आपके पास कितनी labs हैं, what are the equipment which we have there, you know, and how can we improve within that particular type of material resources. For example, let's say some institution has got a lesser amount of funding, right? So you need to improve your efficiency in that particular amount of funding also. So it may be possible for you to, you know, buy a lot of software for your efficiency. It might not be possible for you because depending upon the financial constraints. तो क्या आप ऐसे कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जिससे आप अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं कि नहीं? That is also another objective of the academic administration. Third is to ensure professional ethics and professional development amongst the teachers. So it touches upon various aspects that, you know, you teachers, you must refrain from, you know, diverging into unethical means, and then of course you need to be updated. You know, doctors, they take this Hippocratic oath कि हमारे सामने जो भी पेशेंट आएगा हम उसकी पूरा जान लगा देंगे कि हम उसको सेव कर सके. क्या एज टीचर्स आप कोई हिपोक्रेटिक ओथ या मतलब कोई भी ओथ लेते हैं? या कभी कोई ओथ ली है आपने? इंटीग्रिटी. यू आर द फाउंडेशन ऑफ आवर सोसाइटी. ठीक है, आप लोग क्यों नहीं ओथ लेते हैं? एटलीस्ट यू कैन बी ट्रू टू योरसेल्फ कि हम सिर्फ काम चलाने वाला काम नहीं करेंगे. ठीक है, ये नहीं है कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं गई, मैं लेक्चर दिया और मैं वापस आ गई, उसके बाद बच्चे को कोई डाउट हो गया, बेटा अपने आप देख लेना, गूगल पे सब कुछ मिलता है. नहीं, ऐसा नहीं करना है. दैट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कई बारी हमारे अंदर से आती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बारी एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के कारण वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, मैनेजमेंट के तरफ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. सो दैट्स आवर, यू नो, integrity that we have to maintain as teachers to get the work done effectively and efficiently. That means जितना काम दिया गया है वो करना ही करना है, because you cannot get away with your work not done. You know, आज के टाइम पे your bosses will not allow you to, you know, do work which is, you know, less than your capability, and then you have to do it efficiently because आपके अंदर भी personal level of satisfaction होना चाहिए. That means if you are, you know, sitting all the while drafting all the reports, आप grading करी जा रहे हो, you have to, you know, make the, you know, let's say outputs, COPO mapping करनी है, बहुत कुछ करना है. अगर आप वो efficiently नहीं कर पा रहे हो, that means आप बहुत ज्यादा टाइम उस पर अपना लगा रहे हो, तो you might not be satisfied personally. So you must be equipped with certain tools जो आपकी help कर सके in this particular process. And to ensure qualitative improvement of education. This is a qualitative improvement of education. इस पे हम बच्चों के मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं, बच्चे के आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about the quality of education that we are imparting to the students, that whether it is as per the standards of the industry or not. हमारे यहाँ से बच्चा पास आउट होकर जो है वो बाहर जब जाएगा तो क्या वो इंडस्ट्री रेडी होगा कि नहीं होगा? दैट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी वजह से ही दे आर you know, revising the curriculum again and again. So broadly, 5 different objectives of academic administration are there. And then if we talk of the various responsibility, तो आप सबके ऊपर आती हैं in other than your role as a, you know, particular teacher. The first one is admissions, right? You all have duties in your admission. You want that the admission rate in your institution should be as high as possible. तो उसके लिए आपको advertisement भी करनी पड़ती है. You might also be sitting for the counseling sessions of the parents and a lot of different activities that are actually being performed in those things. So how can we help in improvement of the admission systems? How can we efficiently work in getting the admissions done? We'll be seeing shortly in a while. Supervision of academic affairs such as hiring of the faculty, the promotion, their tenure, then the evaluation, the faculty feedbacks from the students, because these are essentially a part of our system, right? Then development of innovative strategies and logistics in academic administrative functions.
So logistic and strategies are all with the higher management, but any of you who are at the role of coordinators or having some additional responsibilities might have also undergone such types of roles. So this is one of another key responsibilities which is beyond the role of your simple classroom teaching. Then development of academic programs and activities for the students. So you have co-curricular activities, you have extracurricular activities, you need to inculcate these in your curriculum, and then you need to make sure that you are arranging enough of these activities. And again, you have to be very much efficient, because if you plan any activity, then you have to pass on information to the students. Students को कैसे पता चलेगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे इंस्टीट्यूशन में कोई एक्टिविटी की जा रही है? तो उसके लिए भी आपको वर्क करना पड़ता है. Then responding to and resolving the student academic issues, programs and concerns, right? So ek bacha hai, he says I want to retain my scholarship, so what are the conditions for me retaining my scholarship? So you have to resolve that particular query, right? The student says ki after this particular semester, what are the criteria that I can change my branch, right? If I want to go to another branch, so what is the criteria? So daily students aapke paas aise bahut sare criteria leke aate honge, concerns लेकर आते होंगे. If you are having a CGPA system or relative grading system, how is this calculated, how is this work done? So you cannot be sitting there and answering all those student queries. अगर आप इतनी सारी queries लेंगे, especially if any one of you is teaching first year students, तो अगर आप इतनी सारी queries में लगे रहेंगे, you won't have actual time to study yourself or develop your skills and in order to impart a better teaching in better knowledge to the students. आपके लिए उसके पास टाइम नहीं रहेगा. So how to make these things efficient, ये हम आगे देखेंगे. Then coordinating with the teachers in developing academic curriculum for the students. तो हर कुछ साल बाद आपकी भी universities का, आपके भी colleges का syllabus curriculum revise होता है. And then this curriculum revision is not only happening by the management. Along with the management, different other people are there. एक पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ स्टडीज बनता है. उस बोर्ड ऑफ स्टडीज में यू कॉल एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, यू कॉल प्रोफेसर्स ऑफ द हायर रैंकिंग, यू कॉल पीपल फ्रॉम द आउटसाइड, एंड देन in discussion with what is relevant in today's scenario, what topics should be removed from a particular syllabus or subject, and what topics must be included. These all things happen. So yes, you have to coordinate in order to formulate your curriculum. Monitor students academic progress and performances, right? So you have to keep a track of what your students are doing, how they are performing well in different kinds of subjects, and whether their attendance is maintained in those particular subjects, whether they can sit for those particular subjects. अब आप एक सिंपल सी इवेल्युएशन करते हैं स्टूडेंट्स की. सो इट्स नॉट कि आप एंड टर्म के मार्क्स लेंगे और इवेल्युएट हो जाएगा स्टूडेंट्स. आपने उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी देखने हैं, असाइनमेंट्स के मार्क्स भी कैलकुलेट करने हैं. सो अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर देयर इन द टोटलिटी ऑफ दोज पर्टिकुलर मार्क्स. तो उस चीज में हम अपने आप को कैसे इक्विप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अगेन मीडिया सॉफ्टवेयर, राइट? आप अपने आप को कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, वी विल बी लुकिंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग्स. Supervise and improvise the learning management systems and processes. आप में से कितने हैं जिनके इंस्टीट्यूशंस में अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं? In this sense, learning management means लर्निंग मैनेजमेंट LMS, सिस्टम, yeah. LMS, कभी किसी ने सुना है उसके बारे में? यस, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, व्हाट इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? पूरे स्टेट में हरियाणा में डेवलप करवा रहे हैं, अभी बना रहे हैं, बड़ा अच्छा. अदरवाइज नहीं है ना? अदरवाइज एक इंडिविजुअल लेवल पे है, इंस्टीट्यूट लेवल पे जो अपना कोई करना चाहे, अपना करना चाहे तो एक्सटेंड कर देता है सीएसआर में. तो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और बेसिकली एलएमएस जिसको हम बुलाते हैं, दैट्स सच अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप अपना सारा कंटेंट जो है, जो भी आपने स्टूडेंट्स को देना है, वो एक बिल्कुल ही प्लान्ड मैनर में डाल सकते हैं. दैट मींस द स्टूडेंट आपके पास बारी बारी नहीं आएगा कि पूछने मैम मैं असाइनमेंट के क्वेश्चंस भूल गया, मुझे प्लीज बताएंगे वो क्या था, या सर प्लीज आपने जो उस दिन वो लेक्चर पढ़ाया था मुझे उसके नोट्स दे दो, या ऐसा कर दो, या मुझे ये टॉपिक प्रोवाइड कर दो, मैं उस दिन छुट्टी पे था. तो व्हाट यू डू इज आप सब कुछ एक जगह पर स्टोर कर देते हैं. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप में सेंड कर देते हैं. हाँ जी, गूगल फोरम भेजते हैं उनके पास, हाँ जी, गूगल फोरम वो भरते हैं, हाँ जी, और उसके बाद हमारी उनकी फीडबैक हमें मिल जाती वो है. तो हम मतलब मेरे ख्याल से हम काफी समय से कर रहे हैं. ठीक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनको भेज रहे हैं. ठीक है, ये तो एक तरह का यूज हुआ. लेकिन क्या आपने कभी सोचा एक बच्चे ने अपना फोन जो है गुमा दिया, अब वो व्हाट्सएप दोबारा डाउनलोड करेगा, ठीक है, न्यू फोन में उसका पुराना डेटा सब चला गया, अब वो दोबारा आपके पास आएगा मांगने के लिए डेटा, हमारे पास होती है, आपके पास होती है. तो क्या ये आपकी एफिशिएंसी में खलल नहीं डालती? कुछ नहीं, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा अगर सर्वर पे देखिए रहेगा. थोड़ा तो फर्क रहेगा ना. एक वन नहीं, हमारे आपका 10 मिनट भी बच्चा लेगा, वो 10 मिनट आप अपने ऊपर लगा सकते हैं पढ़ने के लिए.
नहीं, जैसे हमने ना चलो, उसके it is not only that कि सिर्फ कंटेंट नहीं होता, उसमें आप इवैल्यूएट कर सकते हो डाटा Yes. कितना बच्चों ने किया आप बच्चों की असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं. LMS कुछ भी कर सकते हो. तो इतना है There कि are काम ways, करना है। yes sir, You can definitely analyze there are it, you ways. can reproduce the Yes, information, definitely so anything. depending upon, जैसे मैंने कहा financial resources are a very big thing. नहीं, कहीं जैसे साइट बनाई है ना तो बच्चे हाँ, उस पे वही। विजिट कर लेते हैं। विजिट कर वो लेते हैं, वहाँ देख के अगर गुम जाता है तो हाँ बच्चे जी। वहाँ विजिट देख के वो देख देख के लेते हैं। मिल जाता है. LMS Yes. कोई ऐसा नहीं। साइट की तरह एक हमें ये नहीं सॉफ्टवेयर पता कि LMS है उसका नाम क्या हाँ है जी। तो हम ये यूज करते हैं। That is a dedicated platform, LMS का जिसको part मान कहते हैं सकते हम, हैं। हाँ जी. Develop and implement key academic performance matrices, right? So that means हम key academic performance metrics को भी evaluate करते हैं. कुछ बीच में आ रहा है ना? The next is ensure a stimulating classroom experience, learning experience to the students. Again, आपको किसी ने नहीं कहा कि आपने एक्स्ट्रा काम करना है. आपका जॉब है पढ़ाना है, पढ़ा के आना है, बट आप उस पढ़ाई को अगले लेवल तक लेकर जा सकते हैं just by creating a stimulating experience. So your students will like you better. Oh, ये वाला टीचर जो है मेरा, ये बहुत अच्छे ढंग से मुझे पढ़ाता है. So that's why I love going to that particular class. मुझे वो इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं कि सब समझ में आ जाता है, मुझे घर जाके दोबारा एक बारी देखना भी नहीं पड़ता, या एग्जाम्स के टाइम पे मेरे लिए बहुत आसान हो सकता है. So that is when you try to create a more stimulating experience for the students in the classroom. Keep abreast of advanced developments in academic issues, methodologies and techniques or the technologies. So today हम ये भी देखेंगे कि आप कैसे कौन से सॉफ्टवेयर या कौन सी बहुत easy simple to use platforms use करके, free of cost platforms, of course you don't have to pay for those particular platforms, उससे आप अपनी academic efficiency increase कर सकते हैं. Maintaining the highest standards in academic administration activities and functions. So आप लोग accreditations करते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा चाहिए होता है. you have to present that particular data also. आप PowerPoint presentations देते हैं. अगर आपके यहाँ MBA की accreditation होती है तो कब से डेटा इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं. And then of course you have to deliver what's the best of your institution to those particular experts who are coming from outside. So yes, ये भी आपकी एक academic responsibility है, and we can all improve these types of responsibilities. Maintenance of official records, maintenance and audit of financial flows and records. So again, we have a software a category or a type of software which is known as the ERP. Have you ever heard of ERP? Enterprise Resource Planning. Yes, Enterprise Resource Planning. SAP वेब चलने लगा है आज तो SAP भी उसका ही एक पार्ट है. तो आप वो कैसे करते हैं? इसमें हर किसी का ऑनलाइन मॉड्यूल्स रहता है. आप कुछ करना है, आपने अपनी एंट्री डाल दी, उसके ऊपर अगर लेवल पे जाएगा तो वहां से अप्रूव हो जाएगा. एंड मतलब तो क्या इससे मैनुअल वर्क आपका रिड्यूस होता है? पेपरलेस हो गया एक तरीके से. पेपरलेस भी हो गया, लेकिन टाइम एफिशिएंट भी हो गया. Exactly. क्योंकि आपको एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस फाइल्स नहीं पहुंचानी है. ऑल यू कैन डू इज जस्ट अपलोड करो और वहां पर आप जाओ. किसी को अपनी ये देखना है कि मेरी सैलरी स्लिप आई है नहीं आई, इट्स ऑलरेडी देयर ऑन दैट ERP एंड यू जस्ट डाउनलोड अपनी सैलरी स्लिप. इट वोंट बी विजिबल टू एनी अदर, सिर्फ आपके लॉगिन में ही विजिबल रहेगी. सो ऑल दीज थिंग्स, दीज small things are becoming more efficient nowadays with the help of the media or the medium which is being used. What is the full form ERP? Enterprise Resource Planning, ERP. लाइक इंट्रा हरियाणा ही जाती है. हरियाणा जैसा वही है. Maintenance of the infrastructure is again an administrative responsibility. Then research administration is also an administrative responsibility, including कि आपने किसी गवर्नमेंट से grants लेने हैं नहीं लेने, patents file करने हैं कैसे करने हैं, सब record बनाना है अपना. So all these things. Then public affairs, how you deal with the other outside sources like media persons or the community, or how you interact with the government. These are also one of the key academic administrative responsibilities. And of course the student services, we have the disability services, we have the student career counseling services, we have the library services and so on. So a lot of these things are there. And before we move on to how we can improve our efficiency in all these domains, we'll be first talking about that what actually is emerging media, because the whole essence of this particular session is about emerging media. So first we will be digging deeper into emerging media क्या होता है. Whether knowingly or unknowingly आप सब emerging media को अपनी life में use कर रहे हैं. So American Journal of Business, it says that it's very difficult to have a proper definition of the word emerging media. So we have just picked out a few of the definitions that will try to demonstrate its meaning to you.
Emerging media is a communication of all types which are based upon digital technologies and increasingly with more and more interactive elements. That means उस media के अंदर interactive elements बहुत सारे होते हैं, as we'll see shortly. It's the media which is used to share and exchange information with the use of emergent or the newer digital technologies, having the features of interactability, the most important thing, which can be on demand and which has a faster speed. Because आज की डेट में आप फास्ट स्पीड के बिना कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप ऑनलाइन जाते हैं, कोई भी वेबसाइट पे आप सबमिट बटन दबाते हैं, हम चाहते हैं कि साथ के साथ आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए. वी आर सो मच कि स्लो स्पीड तो हमें पसंद ही नहीं है. हम इतनी ज्यादा आदत हो गई है फास्ट स्पीड की. 3G से हम 4G में आए हैं, 4G से अब कुछ सिटीज में 5G इंक्लूडिंग चंडीगढ़ 5G इज आल्सो लॉन्च. सो नाउ एंड नाउ वी पीपल आर मोर एंड मोर टुवर्ड्स कि ऐसे हम चुटकी बजाते हैं, हमारा काम हो जाना चाहिए. सो दिस इज इमर्जिंग मीडिया, व्हाट इट कैन डू फॉर यू. What are the different characteristics of these emerging media? The newness, because comparatively, as compared to the conventional media or the mainstream media, these are newer in the market. Interactivity, that means like एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आप सब लोगों ने वीडियो लेक्चर्स सुने होंगे. आप जाते हैं, आप वीडियो लेक्चर सुनते हैं. वो वीडियो लेक्चर में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसको आप रोक कर पॉज कर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता. बट आज की डेट में वीडियो लेक्चर्स ऐसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जिसके ऊपर क्लिकेबल लिंक्स होते हैं. दैट मीन्स यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन दैट लिंक एंड देन यू कैन हैव एन इंटरेक्टिव काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म. अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया इन ऑर्डर टू ट्रेन द न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स और द स्टाफ. The government of India has also started towards this particular interactive videos. So I'll show you one example of how interactive videos look like. So उस interactive videos के अंदर ही आप quizzes डाल सकते हैं, आप questions भी videos के अंदर ही डाल सकते हैं. That means you play and it will just complete a timeline. उस timeline पे एक question पूछेगा, then it will give you time to select your answer and then it will provide you feedback also ki whether your answer was correct or was it incorrect, and then there's a button to go to the next and then again wo video resume ho jata hai. So these type of things are there in the market. Interactivity is very important because listener engagement is very important. Like as you can see right now from my online audience, बहुत कम लोग they are replying. टाइम कुछ ऐसा है, दोपहर बाद का, नींद भी आ रही होती है, but they are not replying much, right? So if we make this more interactive, if we make all the trainings also more interactive, तो उनका ध्यान जाएगा. because वो सो नहीं सकते. they cannot simply just click और वो वीडियो पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. they'll have to be actively engaged. उनको वो नेक्स्ट बटन भी दबाना पड़ेगा, उनको क्वेश्चंस भी आंसर करने पड़ेंगे. a lot of things are happening there, so it will keep them engaged more and more. So new media helps you in doing this. Then इनोवेटिव एंड इवॉल्विंग. आज से 10 साल पीछे चले जाइए. क्या किसी ने सुना था कि आपके पास व्हाट्सएप होंगे? 10 साल पहले तो नहीं था. 15 साल पीछे चले जाइए, तब तो नहीं था. जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तब तो वो नोकिया फोन होता था जिसमें सिर्फ एक वो स्नेक गेम चलती थी. आज हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, राइट? इफ यू हैव ऑल हर्ड ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी, तो आपके पास डेडिकेटेड हेडसेट्स है. आप वो हेडसेट्स लगाते हैं एंड देन आपके पास हैंड कंट्रोलर्स भी हैं एंड विद द हेल्प ऑफ हैंड कंट्रोलर्स आप टेनिस खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या क्या चीजें आप नहीं कर रहे हैं. तो ऑल दीज थिंग्स are there into the gaming sector, and slowly and steadily these are coming into the education scenario also. So we are having our augmented reality and virtual reality lab here also, and we are making content for the education sector. So how your normal stuff can be made more innovative with the help of these emerging technologies. Real time and fast, because like we said कि आजकल हमें सब कुछ चाहिए एकदम साथ के साथ, रियल टाइम में चाहिए. दैट मीन्स एट द टाइम इट इज हैपनिंग इट शुड बी देयर विजिबल टू एवरीबॉडी, राइट? सो यस, न्यू मीडिया इज रियल टाइम एंड इवॉल्विंग. कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, हर चीज हमें अपने पसंद की चाहिए, राइट? आप लोग स्विगी से खाना ऑर्डर करते हैं. yes. मान लीजिए आप साउथ इंडियन के शौकीन हैं. सर आपकी बात कर रहे हैं, ठीक है? मान लिया आप साउथ इंडियन के शौकीन हैं, आपने 10 बारी स्विगी से साउथ इंडियन खाना ऑर्डर किया, ठीक है? अगली बारी आप अपना स्विगी लॉगिन करेंगे, वो आपको दिखाएगा कि स्पेशल डिस्काउंट्स मिल रहे हैं मुझे साउथ इंडियन खाने पे. तो गूगल पे दिखाते हैं मैडम. ये सर चाइनीज के शौकीन हैं, इनको साउथ इंडियन वाले डिस्काउंट्स नहीं शो करेंगे, इनको इनके चाइनीज फूड के डिस्काउंट शो करेंगे. सिमिलरली
कोई चीज आपने सर्च की इंटरनेट पे, आज सर्च की, फॉर एग्जांपल आप नया मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, आप मॉडल सर्च कर रहे हैं, अभी मन नहीं बन रहा आपका कि कौन सा लेना है, तीसरे दिन अपना फेसबुक उठा के खोलते हैं, उसमें कस्टमाइज्ड ऐड आनी शुरू हो जाती है आपको अपनी मोबाइल फोन्स के डिफरेंट मॉडल्स की। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका डेटा जो है स्टोर किया जा रहा है, वो आपने कंसेंट दिया है आपका डेटा स्टोर करने, दैट इज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड उस डेटा के बेस पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग रही है, बैकएंड पे लग रही है, कोई मैनुअल वर्क नहीं है, एंड कस्टम मेड आपके पास एडवर्टीजमेंट शो हो रही है, कस्टम मेड आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं उन्हीं चीजों के रिलेटेड, राइट? सो एवरीथिंग is customized according to your taste, according to your preference, and it's personalized for you, tailor made है, बिल्कुल जैसे आप सूट एकदम मार्केट से अपने साइज का सिलवा के आते हैं, एकदम वैसे ही टेलर मेड आपको मिल रहा है. दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर इमर्जिंग मीडिया. Then is the new way of production, distribution and consumption of messages. तो हम पुराने जमाने की तरह अब ईमेल पे नहीं चल रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास तरीके हो गए हैं कि हम अपना मैसेज कैसे पास ऑन करेंगे. यस, सम थिंग्स आर स्टिल देयर जो कि हम एक बिल्कुल ही रिलायबल सोर्स से ही पहुंचाना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं टू द रिसीवर. बट येस, वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, अ लॉट ऑफ डिफरेंट मीडियम्स थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन इन द प्रेजेंट डे सिनेरियो. And last is virtual and mobile. So virtual means it's not physically present, right? Like these participants sitting online are not physically present with us here, but they are undergoing the same training like you people are. And mobile, you know, you don't want to be restricted to a particular place. आप कहीं भी जाइए, आप अपने फोन में या किसी भी तरह के डिवाइस से आप लॉग इन कीजिए, इंटरनेट एक्सेस आपके पास आएगा, ड्राइविंग करते हुए, कुकिंग करते हुए आप गाने सुन सकते हैं, यू नो, एंड गानों के अलावा आप ऑनलाइन लेक्चर्स भी सुन सकते हैं. खाना बना रहे हैं घर पे, इनमें से कोई बना रहा होगा अपने घर पे खाना, एंड वो साथ में लेक्चर भी सुन रहे हैं, right? So this all happens, this is actually happening us, and we also have to change with time. So we all are evolving with time, and the newer or the emerging media is helping us evolve in that particular scenario. Now let's discuss about the different types of emerging media. बहुत सारी emerging media के बारे में आपको पता भी है, कुछ के बारे में आपको नहीं भी पता है, so one by one we'll be seeing. Interactive websites, like I just mentioned, इंटरैक्टिव वीडियोस के बारे में हमने बात की थी, एक इंटरैक्टिव वेबसाइट्स भी होती है, आप सब यूज कर रहे हैं अपनी इस टाइम पे, क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे से एक पॉपअप खुलता है, एक छोटा सा मैसेजिंग का बार खुलता है और वो पूछता है हाय, हाउ मे आई हेल्प यू, राइट? आप उसको कुछ टाइप कर सकते हैं, वो आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा. या गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पे जाइए, फॉर एग्जांपल आपको एक लाइसेंस बनवाना है, तो आप क्लिक करते हैं, वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता है, वो कहता है ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आप करते हो, क्लिक करते हो, वो अपलोड हो जाते हैं, नेक्स्ट पे वो आपको वेरिफिकेशन के लिए मांगता है, एंड ऑल दोस. सो इंटरैक्टिविटी इज बिल्ट ऑन टू दैट पर्टिकुलर वेबसाइट, अनलाइक फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स जब हमारे पास वो सब चीजें नहीं होती थी, इंटरैक्टिविटी नहीं होती थी, हमें मैनुअल फाइल्स जो है अपने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करके आनी पड़ती थी. अब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है. सो इंटरैक्टिविटी इज देयर इन द वेबसाइट्स. दिस इज there for the last few years, but yes, this is a part of the emerging media. Then 3D animation, आपने न्यूज चैनल्स में देखा होगा, बहुत सारी खबरें जो होती हैं हमारे पास, न्यूज होती है, वो आपकी स्क्रीन पे लाइव चल रही होती है, लेकिन कुछ चीजों में वो आपको कंटेंट नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके पास कुछ होता नहीं है दिखाने को. दे डोंट हैव द एक्चुअल फुटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. तो वो क्या करते हैं, वो एनिमेशन करते हैं वहां पर, और फटाफट से आपको एक मोदी जी दिखाई दे रहे होते हैं और उनके साथ 2-4 मंत्री दिखाई दे रहे होते हैं, जो भी सीन हुआ होता है वो सब कुछ दिखता है. तो दैट इज 2D एनिमेशन. अब हम 2D एनिमेशन से भी बाहर आ गए हैं, हम वी आर हैविंग अ 3D एनिमेशन. तो 3D एनिमेशन जो है एक डेप्थ भी ऐड करता है. तो 2D इज ओनली इन 2 कोऑर्डिनेट्स, आपको एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, सिर्फ एक स्क्रीन पे विजुअलाइज हो सकता है. लेकिन 3D एनिमेशन में है एक डेप्थ आ जाती है. तो दैट डेप्थ वो क्या करती है, वो आपको एक्चुअली फील करवाती है कि दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन रियलिटी, राइट? तो आपको एक डेप्थ आने से थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है. एंड दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर योर एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो. सो अगर आप लोग में से कोई लेट्स से इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों की बैकग्राउंड क्या है, मशीन्स पढ़ाते हैं बच्चों को, मशीन्स पढ़ाएंगे, 2D व्यू में उनको इतनी अच्छी नहीं समझ में आएंगी, लेकिन अगर उनकी 3D एनिमेशन मिल गई तो बच्चे भी सोचेंगे कि क्या बात है, टीचर ने तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया. कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी बताता है, तो वेव्स किस जगह से किस जगह पे जा रहे हैं समझना बहुत मुश्किल है, ठीक है? लेकिन अगर उसकी 3D विजुअलाइजेशन मिल जाए, देन that concept stays in the minds of the students. So this is 3D animation. Podcast. So podcast basically 2 शब्दों को जोड़ के बनाया गया है. Pod
is coming from the iPod, एक जो Apple का डिवाइस था iPod, and then cast is coming from the broadcast. तो पॉडकास्ट एक बहुत ही न्यू चीज है जो कि आप सब लोगों ने भी पिछले 2-3 सालों से शुरू की है सुननी. स्पॉटिफाई, आपका Amazon प्राइम म्यूजिक, ये सब चीजें आप सुनते हैं. ये आप सुनते हैं म्यूजिक के लिए. अभी तक आप सिर्फ इससे वाकिफ थे क्योंकि आप म्यूजिक के लिए इनको सुन रहे थे. लेकिन these things are very much popular in your this particular education sector also, because if you go online and आप चेक करोगे आपका जो भी relevant topic है आपकी फील्ड से रिलेटेड, अगर आप मैथ्स के हैं या आप केमिस्ट्री के हैं या आप इलेक्ट्रिकल या ईसी के हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, अपने कोई भी एक टॉपिक आप सर्च कीजिए एंड साथ में कीवर्ड डालिए पॉडकास्ट, तो आपको रेडीमेड पॉडकास्ट मिलेंगे विच इज जस्ट इन ऑडियो. आप उस ऑडियो को डाउनलोड कीजिए और उसको अपने फोन में रखिए और उसको फिर कभी भी आप सुन सकते हैं. ठीक है, तो पॉडकास्ट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये हम आने वाली स्लाइड्स में वी विल जस्ट गेट टू दैट पर्टिकुलर थिंग आल्सो. बट येस, वी आर हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एजुकेशनल पॉडकास्ट, और आप खुद का भी एजुकेशनल पॉडकास्ट जो है वो ला सकते हैं, और उससे लाने के क्या क्या फायदे होंगे दैट ऑल्सो विल डिस्कवर इन द फ्यूचर स्लाइड्स. Then interactive videos, we have already covered previously that what are interactive videos. The videos that have some sort of clickable links with the help of which you can either move ahead, or you can be solving a quiz, or you can be taken to another website, or some playing a small video in between the original video and things like that. Then augmented reality and virtual reality, two different concepts that are very new. Augmented reality mostly लोग जानते हैं क्योंकि आप में से या आपके नोन्स या आपके जो यंगर जनरेशन है वो स्नैपचैट बहुत यूज करती है. सेल्फी लेंगे, स्नैपचैट से फिल्टर्स लगाएंगे तो उनके सर के आसपास चिड़ियां उड़ने लगेंगी. ठीक है, कहीं उनके बड़े बड़े ऐसे चश्मे बनने लग जाएंगे, राइट. कभी उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बड़े छोटे हो जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो क्या हो रहा है, आपकी रियलिटी है, राइट. आपका कैमरा क्या दिखा रहा है, आपकी रियलिटी दिखा रहा है. योर रियल वर्ल्ड इज बीइंग शोन, आपकी जो बैकग्राउंड है वही दिखा रहा है, सब कुछ वो दिखा रहा है. उसके आगे क्या हो रहा है, एक लेयर सुपर इम्पोज हो रही है. वो लेयर क्या चीज है, वो लेयर एक ऐसी लेयर है जो आपने डिजाइन की है. जो भी वो कैमरा के फिल्टर्स बना रहा है, उस स्नैपचैट एप्लीकेशन के फिल्टर्स बना रहा है, उन्होंने वो लेयर ऐसी डिजाइन की है कि वो आपकी रियलिटी को ऑगमेंट कर रहे हैं, राइट. सो दिस इज जस्ट अ फन एप्लीकेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी. लेकिन आप अपने सिंपल एक स्मार्टफोन की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि अपनी इसी स्पेस में एक सोलर सिस्टम ला सकते हैं. क्यूट पीपल टीच, अगर आप मोटर लाना चाहते हैं आप मोटर ला सकते हैं. तो बच्चा एक क्यूआर कोड उसकी बुक में बना हुआ है, उसको स्कैन करेगा, ऐसे खोलेगा तो वो 2D इमेज एक 3D इमेज की तरह आपके फोन के आगे घूमने लग जाएगी. बट पीछे क्या चीज है, पीछे आपकी एक्चुअल सराउंडिंग्स है, क्योंकि आपको तो अपने कैमरे के थ्रू दिख रहा है. तो आपकी ही इन्वायरमेंट में एक ऑगमेंटेशन हो गई है, एक चीज एड ऑन हो गई है. सो दैट इज योर ऑगमेंटेड रियलिटी. आपका लास्ट डे ऑफ वर्कशॉप है. आप जाने से पहले एक बारी आप जाने से पहले सर हमारी लैब जरूर विजिट करके जाइएगा. साथ में ही है ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी की लैब. फॉर एग्जांपल आप ये करके दिखाओगे? मैं सर उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, तभी मैंने कहा आप लैब किसी भी टाइम विजिट कीजिए सर. कल हम आपको वहां लाइव डेमो देंगे इस चीज का, और ये बहुत इजी टू मेक है. मतलब आप खुद भी बना सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स. और बच्चों को भी मजा आएगा यार कि आज तो क्लास में कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नए तरीके से पढ़ाया गया. Yes sir, sure sir. I'll share one very open source. Yes, sure sir, sure. Maybe in any sort website, podcast, Yes, yes. I'll be sharing lots of those links, and you can also note it down in due course of time. Future slides में I have those open source platforms only. Then physical digital interaction. Physical digital interaction का मतलब आपके पास मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपके पास योर ऑनलाइन मीडिया है. So these things are going hand in hand. No particular company is not having its online presence. अगर किसी भी कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है आज के जमाने में, वो राइज नहीं कर सकती, बिकॉज ऑनलाइन ही आपकी इंफॉर्मेशन दूसरी जगहों पे जाती है. उनको ऐसे ही पता चलता है कि कोई है. तो जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक Amazon हो गया या Flipkart हो गया, these are these physical digital interaction because these are those contact points between you as customers एंड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ये शॉपकीपर्स हैं जो ये प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. सो नॉर्मल शॉपकीपर्स यही आपकी इन प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं. दीज मर्चेंट्स दे आर गोइंग ऑन टू दीज पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स. ये अपनी नॉर्मल दुकान भी चला रहे हैं, साथ के साथ ही ऑनलाइन सामान भी बेच रहे हैं ताकि इनको फायदा ज्यादा हो. एक और एग्जाम्पल लूंगी. आप रेलवेज में जाते होंगे, ट्रेन की बुकिंग आप काउंटर पे जाके भी कर सकते हैं. ठीक है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. सो डिजिटल फिजिकल इंटरैक्शन जो है दैट इज अ न्यू मीडियम
दैट मीन्स कि आप दोनों वेज में अपने आप अपना जो बिजनेस है या अपना जो भी आपका लाइक लेट्स से अगर आपका अपना इंजीनियरिंग आपका कॉलेज है उसकी अगर आप पब्लिसिटी भी करना चाहते हैं तो देयर इज नो बेटर वे देन टू गो आउट। आप जरूर अखबारों में ऐड देंगे, ठीक है, कि हमारे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया, बिकॉज दैट इज योर मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन उसके साथ साथ यू विल गो ऑन टू वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो टू फॉर द मार्केटिंग ऑफ योर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। Video and audio streaming, these are not new to you, and in Nitter this particular online broadcasting has been online trainings basically 2012 से चल रहे हैं। 2020 में ही मैक्सिमम लोगों को इसका इम्पैक्ट पता चला when this particular COVID hit us, and उसके बाद से we are all here, but still this is a new technology, audio and video streaming। डिजिटल मॉडलिंग, एक हो गई बात एनिमेशन की। अब एनिमेशन करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडल तो करना पड़ेगा। लाइक ये मेरे पास है फोन, इसकी मैं फोटो खींच दूंगी, लेकिन वो आपको सिर्फ प्रिंट आउट में एक पेपर पे नजर आएगा। लेकिन अगर मैं एक सॉफ्टवेयर में डिफाइन कर दूंगी कि इस एंगल में कैसा, कितनी इसकी लेंथ विड्थ है, फिर उसको थोड़ी मोटा चौड़ाई दे दूंगी, उसको थोड़ी डेप्थ दे दूंगी, वो सारी फीचर्स उसके ऊपर ड्रॉ कर दूंगी, दैट मीन्स आई एम डिजिटली मॉडलिंग, मैं 3D मॉडलिंग कर रही हूँ। एंड अगेन वी हैव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कोई ऐसा कंसेप्ट है जो आप समझाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो आप रिलेशनशिप समझाना चाहते हैं कि हाइड्रोजन एटम कैसे ही सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड करके कुछ ना कुछ बना लेता है, और जो आपकी नोबल गैसेज हैं they are not bonding with any other elements, right? अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड समझाना चाहते हैं, कुछ भी समझाना चाहते हैं, तो अगर आप उसकी 3D एनिमेशन से पहले उसको मॉडल करेंगे, एक बॉन्ड को, एक सर्कुलर बॉल ही बनानी है उसको, तो ठीक है वो बनाएंगे, उसके साथ अटैच करेंगे और सर्कुलर बॉल्स को, और वो जो बॉन्ड्स हैं उसको दिखाने के लिए आप सिलेंड्रिकल रॉड्स यूज करेंगे, तो आप वो 3D मॉडल बना सकते हैं। स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए थोड़ा मॉडलिंग करनी मुश्किल रहती है, बट बाकी अदर फील्ड्स के लिए आप मॉडलिंग आसानी से कर सकते हैं। नहीं भी आती मॉडलिंग आपको फ्री सॉफ्टवेयर में करनी, आपको रेडीमेड मॉडल्स भी अवेलेबल कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, बट येस इट विल टेक यू बियॉन्ड। सोशल मीडिया आप सारे यूज करते हैं, व्हाट्सएप से लेकर टेलीग्राम से लेकर फेसबुक, ट्विटर, Flickr, Instagram, so everybody uses this, and we'll have some discussion on the use of these in academic administration, not just the teaching learning but other aspects of the administration also. And lastly, content aggregator, ये टर्म नहीं है पर ये मालूम सबको है कि कंटेंट एग्रीगेटर क्या होता है। बेसिकली डिफरेंट वेबसाइट से या डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा कंटेंट को एग्रीगेट करना है, इकट्ठा करना है, और सबसे बड़ा एग्जांपल जो आपके पास है दैट इज गूगल। तो बेसिकली गूगल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अ कंटेंट एग्रीगेटर। तो एक कंटेंट एग्रीगेटर आप ऑनलाइन भी हो सकता है, या आपके इंस्टीट्यूशन का भी अब एक कंटेंट एग्रीगेटर होता है। या मान लीजिए कि आप 4 टीचर्स एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपने, या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, तो आप इकट्ठे बैठ के फ्री टाइम में एक कंटेंट इकट्ठा करना भी शुरू कर सकते हैं, दैट दिस इज द रेलिवेंट कंटेंट व्हिच इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ एरर्स, एंड देन यू कैन give that particular content to your students. So this is how you can work on it. So emerging academic administration, first of all we'll start with the online meeting tools. Why we want to use these online meeting tools? इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्यों यूज करेंगे? बिकॉज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लाइक यू आर बिजी समवेयर, ठीक है, आप एक मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए, बाद में आप उसके मिनट्स को देख सकते हैं। मिनट्स को भी देखने के लिए कोई बंदा वहां बैठा नहीं होगा मिनट्स बनाने के लिए। जैसे ये हमारा गूगल मीट है, इसके साथ आप अगर देखेंगे जहां स्टार्ट रिकॉर्डिंग है वहां उसके नीचे स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, दैट मीन्स एक थर्ड पार्टी, न्यूट्रल पार्टी है, इसको नहीं पता कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, वो ऑटोमेटिकली मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है आपके बना रहा है, एंड देन इट विल गिव इट टू यू एट द एंड ऑफ योर मीटिंग। जैसे आपको अपनी रिकॉर्डिंग मिलती है इस वीडियो की, अगर हम स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज भी करेंगे तो देन इट विल डिलीवर यू दोज मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। तो आपको उसको बैठ के सिर्फ फॉर्मेट उसका सेट करना है, एंड देन यू आर गुड टू गो, यू कैन हैंडल इट टू ऑल दोज पीपल हु आर नॉट प्रेजेंट, राइट? जो मैडम ये मिनट्स तो मीटिंग है, हाँ जी सर, बोलेंगे वो रिकॉर्ड करेगा, हाँ जी सर, टेक्स्ट टू स्पीच होएगा, गूगल मीट भी जैसे दिस इज एआई बेस्ड, स्पीच टू टेक्स्ट, हाँ स्पीच टू टेक्स्ट होगा सर, हाँ जी, दिस इज एआई बेस्ड। ऑटोमेटिकली उसको आप गूगल का एआई एपीआई लगता है, गूगल स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई लगता है इसमें, मिनट्स ऑफ मीटिंग ना, हाँ जी, वो आपको पूरी ट्रांसक्रिप्शन देगा, उसमें से जो रेलिवेंट कंटेंट है आप रखिए, आपको सब नहीं टाइप करना पड़ेगा। देन इंक्रीज सेविंग्स, आप मान लीजिए कि मीटिंग्स के लिए इधर उधर जाने का खर्चा बचेगा आपका, ठीक है, एक ट्रैवल एक्सपेंडिचर आपका बहुत बचेगा इसमें, तो इंक्रीज सेविंग्स एंड ऑफ कोर्स मीटिंग ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज।
एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स के लिए हम बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल गूगल मीट हम यूज कर सकते हैं. दिस इज फ्री एज ऑफ नाउ. अर्लियर ये आपका पेड होता था. देन जूम 40 मिनट्स का आप एक मीट बना सकते हैं. इस पे गूगल मीट 1 आवर का बना सकते हैं. अगर पेड है तो आप कितना भी बना सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है हमारे पास. गो टू मीटिंग, स्काइप फॉर बिजनेस, सिस्को, वेबएक्स है. इसमें से कुछ पेड है, कुछ आपके फ्री भी है. देन फॉर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस यू कैन यूज गूगल मीट. ठीक है, आपको एक एक घंटे के लेक्चर्स इसमें मिल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू, अभी आज की डेट में भी बच्चे कहते हैं कि हमें डाउट्स है सर. आप सोचते हो कि अभी तो मैं डाउट क्लास नहीं ले सकता, मैं बहुत बिजी हूँ, घर में मैं फ्री होऊंगा. तो बच्चों को एक लिंक बना के दीजिए कि ज्वाइन दिस लिंक फॉर माई डाउट क्लासेस. बच्चे ज्वाइन करेंगे, अपने डाउट्स क्लियर करेंगे उसके ऊपर. जूम आप यूज कर सकते हैं. अब ये जो लास्ट दो है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड ब्लैक बोर्ड लर्न, दीज आर पेड वंस, राइट. अगर आपको कुछ भी कितनी भी ड्यूरेशन की अगर आपको मीटिंग बनानी है, बोथ ऑफ दीज आर पेड. अदरवाइज द फर्स्ट टू ऑप्शंस दे गिव यू फ्री अप टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. उसके बाद आप दोबारा मीटिंग लिंक ज्वाइन करवा सकते हैं उनको. बट द लास्ट टू वंस आर एक्चुअली पेड. बट इनके एडवांटेजेस बहुत है. इफ आई टेल यू दैट यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर क्लासरूम्स, आप अपना कंटेंट भी इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं. एंड जैसे प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो प्रैक्टिकल में आप क्या करते हो, यू डिवाइड द एंटायर क्लास इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स. So here you can create those smaller classes or the smaller breakout groups, and आप individual group में join करके उनसे पूछ के वापस अपनी main class में enter कर सकते हैं. So this is just like एक virtual classroom पूरा बन जाता है. practical sessions अगर आपने कराने हो तो it's just like एक ही मीट के अंदर, एक ऑनलाइन मीटिंग के अंदर सेवरल स्मॉल ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो जाती हैं. आपको पता भी नहीं चलता, इतनी सीमलेस ट्रांजिशन होती है. आपको ऐसा लगता है कि आप एक टेबल के बाद दूसरे टेबल पे गए, फिर तीसरे टेबल पे गए, एंड सो ऑन. So this is also something which is very good, but then these are paid platforms. Then LMS tools or your learning management system tools. So online classes में a lot of different institutions went in for such tools because your students can raise their hands, they can comment, they can you can put a quiz in the class, you can call for a live poll in the class that how many of you say that agree with the point that Newton has 3 laws of motion. So कैसे पता चलोगे, आप काउंट थोड़ी करोगे उनको. तो देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच पॉप्स अप, द स्टूडेंट कैन आंसर यस और नो, और आप पोल ले सकते हो, उनसे वोट करवा सकते हो. एंड लाइव रिकॉर्डिंग्स आपकी हो सकती हैं. देन बेटर स्टूडेंट एंगेजमेंट, बिकॉज इसी के अंदर आपको अलग से टेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है. आप इसी के अंदर अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं बच्चों को, आप वो सेट कीजिए. आपको इवैल्यूएशन भी खुद नहीं करनी पड़ेगी बिकॉज ये ऑटोमेटिकली आपको इवैल्यूएट करके देगा. देन इसी में आप बच्चों के असाइनमेंट्स भी अपलोड कराएंगे. आप इवैल्यूएट तो असाइनमेंट को खुद करेंगे, लेकिन आप वहीं पे उसके मार्क्स डाल देंगे कि 10 में से इस बच्चे के 6, नेक्स्ट असाइनमेंट पे गए इसके 7, नेक्स्ट असाइनमेंट में गए इसके 8. तो जब बच्चे की क्विज ऑटोमेटिकली चेक हो गई, असाइनमेंट भी चेक हो गई, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड स्टूडेंट इवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाती है जिसमें सब बच्चे का डेटा ऑलरेडी अरेंज है. आप बस उसमें एंड टर्म के मार्क्स लगाइए, एक फॉर्मूला लगाइए टोटल सम करने का, और आपको आपका सम मिल जाएगा. तो इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी. इट ऑल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ स्टूडेंट अटेंडेंस, क्योंकि आपको स्टूडेंट को अगर मान लीजिए आपने ये रूल बनाया है, जैसे फिजिकल क्लासरूम्स में क्या होता है कि एक बार बच्चा अंदर आ गया तो आप तो उसको बाहर जाने नहीं देते हैं. ऑनलाइन क्लास में तो बच्चा निकल गया तो पता नहीं चलेगा ना. तो हमने ये रूल बनाया है कि चलो 60 में से आपको कम से कम 50 मिनट क्लास में प्रेजेंट रहना है. जैसा भी आप रूल बनाना चाहें, क्योंकि थोड़ा बहुत आप रिलैक्सेशन दोगे कनेक्टिविटी इश्यूज के करके. तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे टूल्स क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट का इन टाइम इवैल्यूएट कर लेते हैं. और जिन भी बच्चों का इन टाइम 50 मिनट से ज्यादा रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके प्रेजेंट मार्क जाएंगे, अदरवाइज वो एब्सेंट मार्क जाएंगे. ये स्टूडेंट के पास भी इंफॉर्मेशन जाती है कि वो एब्सेंट मार्क हुआ है और आपके पास भी इंफॉर्मेशन रहती है. तो अगेन आपकी मैनुअल जो वर्क है वो यहाँ पर कम हो गया है. देन अगेन लाइव पोज होते हैं, आप वोट मांग सकते हैं, बच्चों को डिफरेंट क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं. तो दीज थिंग्स यू कैन डू. एंड वन फ्री LMS टूल एज ऑफ नाउ इज योर गूगल क्लासरूम. अगर आपके पास कभी भी ऐसा कुछ, तो मतलब भगवान ना करे दोबारा ऐसा कोविड वाला सिनेरियो आए, बट अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो गूगल क्लासरूम इज योर गो टू टूल. आप उस पे जा सकते हैं और आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है. Then of course we have your ERP tools, that is your enterprise resource planning tools. अगर आपके इंस्टीट्यूट के पास ऐसा ERP solution है, very good. अगर नहीं है तो मैं कुछ ERP solutions आपको बताऊंगी which are very free of cost. वो आप पर्सनली अपने लिए यूज करिए एंड देन यू इवैल्यूएट कि आपकी उसमें कितना फर्क आया है. इनिशियली कुछ दिन लगेंगे आपको एडजस्ट होने में, बिकॉज आप अभी तक मैनुअल लेबर में लगे थे. एक बार आप उस प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे, देन यस इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू.
तो ईआरपी सोल्यूशन से आप एडमिशन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कौन से बच्चे हैं, बच्चों का क्या डिटेल है, बच्चों के पेरेंट्स के नंबर्स क्या है, बच्चे का कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या है, कभी भी उसको कॉन्टैक्ट करना पड़े तो, ठीक है। बच्चे की फीस कितनी आ गई है, कितनी नहीं आ गई है, बच्चा की कौन से सब्जेक्ट में अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, अटेंडेंस मैनेजमेंट का भी काम करते हैं, बिकॉज किसी भी सब्जेक्ट में अटेंडेंस शॉर्ट है, आप उसका सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं देने देंगे, तो मैन्युअली कैलकुलेट करने की जगह वो अपने आप ही आपको दिखा देगा। स्टूडेंट को भी ग्राफिकल फॉर्म में नजर आएगा कि मेरी इस सब्जेक्ट में अटेंडेंस कम हो रही है, तो मुझे इस सब्जेक्ट को अब लगाना है, मुझे इसकी क्लास और कोई मिस नहीं करनी है। देन इश्यूड एनुअल कैलेंडर प्लानर, तो प्लानर में आप स्टार्टिंग में ही अपनी जो गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हॉलीडेज हैं वो आप डाल दीजिए, उसके हिसाब से देन यू नो प्लान ऑल योर अदर एक्टिविटीज, एंड देन दिस इंफॉर्मेशन इज shared with every stakeholder involved, every teacher, every student involved. Fee management, whether the student has paid his or her fee in time, exam fee की है, tuition pay की है कि नहीं की है, exam planners also are there। तो आपको मैनुअल बच्चों को पीडीएफ नहीं शेयर करने हैं कि ये आपका एग्जाम डेट्स हैं, इससे इसमें ये है, वो सब बच्चे के ईआरपी में डायरेक्ट एक पॉपअप आएगा जिससे कि वो भूलेगा ही नहीं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, बच्चे को अपने हर सब्जेक्ट के हर प्रैक्टिकल के मार्क्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स भी उसको साथ के साथ अपलोड कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, अगर हमें ऑप्शन ना दी जाए, हमें बोला जाए कि मार्क्स अपलोड करने हैं, हम सोचते हैं कि एंड में करेंगे एक ही बारी मार्क्स अपलोड, लेकिन अगर आपको बोला जाए मैनेजमेंट के थ्रू कि आप साथ के साथ कीजिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सेमेस्टर एंड होने पे जाके आपको लगेगा कि वो काम जो पहले कर लिया ना, अब बर्डन नहीं पड़ रहा है मुझे, क्योंकि अब मैं भूला नहीं हूँ कि किसके कौन से प्रैक्टिकल में एब्सेंट था, कौन से में नहीं था, एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो बहुत हेल्पफुल होता है अगर आप साथ के साथ वो प्लान हो जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन सेट बनाकर आप पूरा जिसको कहते हैं बैंक, क्वेश्चन बैंक बनाकर यू कैन ऑलरेडी अपलोडेड देयर सो दैट स्टूडेंट्स कैन रिवाइज कि पिछले साल आपकी यूनिवर्सिटी ने किस तरह के क्वेश्चन आए थे पिछले लास्ट ईयर्स में और अब किस तरह के एक्सपेक्टेड है। Then internal communications में these ERP tools are very helpful. For example, I am creating a meeting. I will not mail anybody else that this is the time of the meeting, this is the venue of the meeting. आपके पास ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं, आप मेन्यू में सिलेक्ट करोगे कौन से बंदे के साथ मीटिंग करनी है, कौन से ब्लॉक में, कौन से रूम नंबर में, कितने बजे मीटिंग करनी है, 4 क्लिक किए, उसके बाद सेंड का बटन दबाया, सबको मीटिंग की ईमेल चली गई कि इतने बजे आपकी ईमेल है। कुछ टाइप नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो रेडीमेड टाइप्ड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्लिक किया और उनको इनविटेशन चला गया। इंटरनल कम्युनिकेशंस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट हैज सेवरल अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स आल्सो, लाइक आपकी सैलरी स्लिप्स आप उसमें से डाल सकते हैं, आप कितने दिन यूनिवर्सिटी या अपने इंस्टीट्यूट गए हैं, कौन सी तरह की आपने लीव्स ली हैं, कितनी पेंडिंग है, वो सब कुछ आप इसमें कर सकते हैं। आपने अपना लेक्चर किसी और को देकर गए हैं कि मेरी एडजस्टमेंट आप ले लेना, तो उसका भी नाम साथ में आ जाता है कि दैट पर्सन हैज एग्रीड टू टेक हिज और हर एडजस्टमेंट। ये वाला ERP ओपन सोर्स में है? Sir, that I'm giving. So a few of the open source ERPs are Kino ERP, then Credily for the transactions, business transactions. आपका फाइनेंसेस मेजर एकेडमिक करें। में तो फिट नहीं होता। हाँ, एकेडमिक में सिर्फ सैलरीज में फिट हो सकता है। बट वो भी उसमें लिमिटेशंस हैं। हाँ, लिमिटेशंस हैं बिकॉज़ वो इट्स नॉट फ्री, आई मीन अल्टीमेटली वो ट्रायल ही होता है वो। नहीं, इट्स फ्री फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स। यस, बट आप अपना खुद का उसमें डाल सकते हैं दैट योर सैलरी स्लिप्स आर ऑनलाइन मैनेज्ड, तो आप अपने लिए वो डाल सकते हैं। रोजारियो सिस इज एन ओपन सोर्स, थोड़ी सी इसमें कोडिंग रिक्वायर्ड है, अदरवाइज इट्स ओके। लाइक वो कोडिंग भी ऐसी नहीं कि आपको हार्डकोर सी प्रोग्रामिंग करनी है, ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप्स है, आपको लॉजिक बनाना है उसमें। देन फिनिक्स ईडीयू, इनमें से सबसे ज्यादा यूजर फ्रेंडली कौन सा है? सभी ठीक है सर, काइनो ईआरपी इज गुड, बट बेस्ट ये रहेगा कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट को बोलिए कि आपके लिए कि ईआरपी सोल्यूशन डिजाइन करें। हाँ जी, दैट्स द बेस्ट। इशूड लेवल जब तक वो चीजें नहीं होती है कि इशूड लेवल, बिकॉज अल्टीमेटली फ्री टूल्स के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। दिस इज एक, इनमें से कोई भी एक ईआरपी टूल्स आपकी सारी चीजें कवर नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो सम थिंग्स आपका कुछ ईआरपी टूल कवर कर रहा है, कुछ बाकी थिंग्स कुछ और कवर कर रहा है, बट अगर आप अपना एक स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन के लिए बोलते हैं तो आपके टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से ही वो बनाकर आपको देंगे। Then emerging media for efficient academic administration blogs. कभी किसी ने सोचा था ब्लॉग से भी efficient administration हो सकती है? What are blogs? अपने थॉट्स पुट करने के लिए, किसी को कुछ नॉलेज देने के लिए भी हो सकते हैं। मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है तो आज मैंने अपने ब्लॉग पे एक नई डिश की रेसिपी लिखी, ठीक है। कोई टेक्निकल बंदा बहुत अच्छा है, उसने अपना टेक्निकल ब्लॉग लिखा, तो उसमें से आपको हेल्प मिल सकती है। लेकिन
ब्लॉग्स क्या होते हैं, पर्सनल थॉट्स होते हैं, जैसे कि सर ने कहा। तो उसमें इंफॉर्मेशन कितनी क्रेडिबल है या नहीं है वो हम नहीं बता सकते कि उसने सब सच लिखा है। अगर हम टेक्निकल ब्लॉग की भी बात करें तो टीचिंग लर्निंग में इसको कितना यूज करना चाहिए उसके बारे में तो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप इसको एडमिशंस के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? बच्चे ब्लॉगिंग करते हैं, स्टूडेंट्स दे डू द ब्लॉगिंग, और जब वो ब्लॉगिंग करते हैं तो अपनी पर्सनल डेली लाइफ के बारे में लिखते हैं। तो वो डेली लाइफ के बारे में पढ़कर हमें बहुत हिंट मिल जाता है कि अगला इंस्टीट्यूशन मेरे लिए कैसा होगा, क्या वो मेरे लिए अच्छा होगा या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, बच्चे ब्लॉग्स लिखते हैं, हमारे स्टूडेंट, आपके स्टूडेंट्स लिखते हैं, आपके बच्चे भी लिखेंगे बड़े होकर, सब लिखेंगे सर ब्लॉग्स। नहीं मैंने तो लिखे हैं, मैं तो मैं कह रहा हूँ हमारे टेक्निकल, हाँ सब लिखते हैं मेरे सर। तो अपनी ही साइट थी ना, तो हाँ मैं जी। ये मतलब बच्चे कहाँ लिखते हैं सर फ्री ब्लॉगिंग आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो उस पे वो लिख देते हैं। हाँ, नोटपैड भी एक साइट है जो जैसे बच्चे बुक सीखते हैं, छोटा मोटा वर्डप्रेस इज वेरी गुड एक्चुअली, बहुत बड़े हैं, तो सब लोग कर सकते हैं ये चीज। कंपटीशन भी होते हैं उनके बच्चों के। एंड इसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे यूज कर सकती है इन ऑर्डर टू गेट गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स टू देयर कैंपस, बिकॉज अल्टीमेटली आपका भी रिफ्लेक्शन इसी से हो रही है कि आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, कैसी उनकी प्लेसमेंट्स है, वो सब चीजें मैटर करती हैं आज की डेट में। और इंटरनेट ने इतना इन्फॉर्म्ड कर दिया है सबको दैट बिफोर कमिंग टू योर इंस्टीट्यूशन सब गूगल करके आते हैं कि क्या वो वाकई में अच्छा है कि नहीं अच्छा, और गूगल आपके इंस्टीट्यूशन का जैसे ही नाम आया दैट इट विल टेल यू कि उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकलनी है। तो एडमिनिस्ट्रेटर्स दे कैन एक्चुअली गाइड द ब्लॉगर्स, सो उनकी पोस्ट जो है मोर लुक्रेटिव टुवर्ड्स द एडमिशन प्रोसेस। तो अगर बच्चों को गाइड किया जाए कि आपने थोड़े ब्लॉग्स भी थोड़ा उस तरीके से नेगेटिविटी कम लाओ, दैट कुड बी इंकरेजिंग। यूट्यूब बहुत देर से यूज होता आ रहा है, नॉट ओनली फॉर पोस्टिंग द पिक्चर्स बट फॉर प्रमोटिंग योर ओन इंस्टीट्यूट्स। So universities, different kinds of universities, they have been making their YouTube videos for the last 20 years or so. And of course, you can use it in your teaching learning experiences also in order to add on to what you are already teaching. ठीक है, आपने क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया, साथ के साथ आपने बच्चों को 2 लिंक्स फॉरवर्ड किए क्लास में से जाते हुए कि बच्चों आज के लिए आप ये लिंक्स देखोगे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज के ऊपर, या ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ उन्होंने भी सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, तो आप ये आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये वाले भी साथ में करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। पब्लिक फोरम्स, कोरा क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सारे, किसी ने एडमिशन लेनी है कॉलेज देखो पे जाते हैं, ठीक है, किसी ने एज अ फैकल्टी कहीं लगना है तो फैकल्टी भी हमने अगर कहीं और किसी और कॉलेज में देखना है, कॉलेज की रेपुटेशन के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि हम लगे कि नहीं लगे। तो करियर्स 360 पे आप जाकर उस कॉलेज के एक पूरे एटीट्यूड इन एटमोस्फियर को आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो टू आंसर ऑल द स्टूडेंट क्वेरीज, टू आंसर ऑल द डिफरेंट क्वेरीज, ये आपके पब्लिक फोरम्स हेल्प करते हैं। So for the hiring part, you can go in for Indeed.com, Simply Hired, and Glassdoor is also a very popular platform जहाँ पर you can search for your future workplaces कि अगर आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं तो कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। फिर आप एक्टिवली उन वेबसाइट्स पे, उन कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे या उन इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं कि आपको उनकी एड्स वगैरह कब निकल रही है। तो ओके, I think Deepika ma'am, do you have any query? Maybe शायद, हाँ जी। देन बुक मार्किंग वेबसाइट्स, कभी सुना नहीं होगा इनके बारे में। बुक मार्किंग वेबसाइट्स, बुक पढ़ रहे हो आप, जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं आप भी बुक मार्क लगा देते हो कि ये टॉपिक्स मुझे कल आकर पढ़ने हैं, या आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, किसी टॉपिक पे अपने पीएचडी के लिए आप रिसर्च कर रहे हो, यू हैव सर्टन पेपर्स प्रिंटेड आउट, आप उसको हाईलाइट करते रहते हो, ठीक है, कि ये चीज मैं दोबारा गो ओवर करूंगा। तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती हैं, जहां जहां पर भी उनके कॉलेज का नाम हाईलाइट हो रहा है, उनके इंस्टीट्यूशन का नाम हाईलाइट हो रहा है, दे कैन एक्चुअली टैग दोज पर्टिकुलर वेबसाइट्स एंड देन वो सारी की सारी एक इकट्ठी एक वेबसाइट पे सेव हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल दिस delicious.com, दिस इज अ वेबसाइट अर्लियर लाइक del.icio.us, बट अगर आप डॉट्स हटाएंगे तो डिलिशियस बन जाता है। तो दिस delicious.com, दिस इज अ वेबसाइट व्हिच कैन स्टोर बुकमार्क्स ऑनलाइन। ऑनलाइन बुकमार्क स्टोर हो रहे हैं तो दैट मीन्स आप कहीं से भी उन बुकमार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं। देन टैग्स आप लगा सकते हैं
to organize your bookmarks. For example, आपके कॉलेज की कोई प्लेसमेंट एक्टिविटी हुई है तो प्लेसमेंट के नाम से टैग्स बना लिए आपने. आपके कॉलेज की कोई और एक्टिविटी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सोशल सर्विस की एक्टिविटी की है, आप वो अपने बुकमार्क्स लगा लीजिए. एंड एट द एंड यू कैन एक्चुअली कलेक्टिवली गेट ऑल दीज न्यूज आइटम्स एंड देन आप उसको शेयर कर सकते हो टू द योर सोशल मीडिया पोस्ट to highlight your particular college, that what's actually happening in your particular university. So another tool which is used by the administrators, of course I don't know कि आपके level पे ऐसे use होता है कि नहीं होता, but when you definitely go into the higher ups, आप अपने institute की publicity promotion करते हो, whether it's a government institute or it's a private institute. जब तक आप अपने institute को आगे नहीं लेकर आते हो तो वो सबके नामों से पीछे रह जाता है. So this everywhere you have to do this thing. इन पॉडकास्ट, हम बात करेंगे पॉडकास्ट इन एजुकेशन की. अब हम म्यूजिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं. एडवांटेजेस क्या है? लिसन व्हेनेवर वेयरएवर, बिकॉज आपके पास जो पॉडकास्ट है वो आप डाउनलोड भी करके रख सकते हैं या आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं. दोनों ऑप्शन आपके पास होती है. आप म्यूजिक भी अपने फोन पे डाउनलोड भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी सुन सकते हो, राइट. ईजियर फॉर स्टूडेंट्स टू कैच अप. स्टूडेंट अटेंडेंस इश्यूज होते हैं, बच्चे कई बार क्लासेस नहीं लगाते, उनकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो अगले दिन वो कंफ्यूज बैठे रहते हैं क्लास में. अगर आपने पढ़ाते पढ़ाते साथ में अपने फोन का सिर्फ रिकॉर्डर ऑन कर दिया, सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया, कोई वीडियो बनाने को नहीं कह रही, उसके बाद इसको एक फ्री पॉडकास्टिंग वेबसाइट में डाल दिया और बच्चों को जाते जाते लिंक डाल दिया या शाम के टाइम एक लिंक भेज दिया कि जिन बच्चों की क्लास मिस हुई है वो कम से कम इसको सुन के आए. अब वो कब सुनेंगे? रात को सोने से पहले, लाइटें ऑफ हैं, चलो सुन तो लेंगे ना, क्योंकि उसमें आंखों पे जोर नहीं पड़ रहा, सिर्फ आप कानों से सुन रहे हो. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, बच्चे कैच अप कर लेंगे. एटलीस्ट दे आर नॉट टोटली कंफ्यूज आफ्टर कमिंग इनटू योर क्लासेस. लिसनिंग माइट एक्चुअली बी बेटर देन वॉचिंग और रीडिंग. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपको गाने याद हो जाते हैं? सुनते हो, देखते तो नहीं हो सारा टाइम, पर याद हो जाते हैं. ऐसे ही अगर आप कुछ चीज सुनोगे, रेपिटेटिवली सुनोगे, आपको वो याद हो ही जाएगी. मम्मी हमारे को बोलती है एक चीज करने को, नहीं सुनते, दोबारा वही चीज बोलेगी, तीसरी बार वही चीज बोलेगी, चौथी बार से हम काम करना शुरू कर देंगे वो वाला, क्योंकि सुनने का असर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू योर वॉचिंग और रीडिंग. प्रायोरिटाइज एक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम. हाउ कैन यू प्रायोरिटाइज एक्टिव लर्निंग इन द क्लासरूम? शाम को एक छोटा सा टॉपिक, उसका एक छोटा सा अंश बच्चों को रिकॉर्ड करके भेजिए. ठीक है, अगले दिन बच्चे वो सुनकर आएंगे तो उससे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे क्लास में ज्यादा, क्योंकि बच्चों को कुछ पता है और कुछ नहीं पता है, तो वो जो चीज नहीं पता है वो उसको जानने के लिए और एनर्जेटिक होंगे और एंथुजियास्टिक होंगे. तो अगर आप ये छोटी छोटी चीजों को अपनी हैबिट बनाएंगे, इट विल टेक यू, it will make you separate from, it will make you unique from the other teachers of your institute. It helps accommodate all learning styles. अब कोई बच्चा जो है वो फास्ट कैचअप कर लेता है, कोई बच्चा जो है वो स्लो कैचअप करता है. आप क्लास में अपनी पेज से पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने एक बार रिपीट कर दिया, दो बार रिपीट कर दिया, इससे ज्यादा बारी तो आप भी रिपीट नहीं करते, क्योंकि आपके पास एक सिलेबस है, सेट डिफाइंड सिलेबस है जो आपने कवर करना ही करना है. तो साथ के साथ वो जो आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा था, शाम को आपने भेज दिया, बच्चे ने उसको प्ले किया, पॉज किया, जहां अटका दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड किया, दोबारा उसको प्ले किया, 2-3 बारी में उसको समझ में आ गया कि कहना एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं. या किसी का कभी कोई लैंग्वेज बैरियर होता है, ठीक है, किसी को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं समझ में आती है, तो वो उस समय रुकता है, गूगल कर लेता है साथ के साथ, मतलब कि उसका मतलब क्या होगा, एंड देन उसको वो सीख लेता है, समझ लेता है. तो इट एक्चुअली हेल्प्स अकोमोडेट ऑल द लर्निंग स्टाइल्स. इट्स अ परफेक्ट रिवीजन टूल. ठीक है, आप पढ़ पढ़ के थक गए हो, आपने अपनी रेस्ट करने के लिए आंखें बंद कर ली हैं, पॉडकास्ट आपने चालू कर दिया है, वो आपके कानों में पड़ता जा रहा है, तो रिवाइज आप कर रहे हो, बट यू आर रेस्टिंग योर आईज, राइट. इट एक्चुअली इज अ वेरी परफेक्ट रिवीजन टूल. और आप ये गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हो, कॉलेज तक जा रहे हो तो जाते जाते भी आप अपने कानों में सुन सकते हो, या बस में बैठे हो तो उसमें सुन सकते हो. ठीक है, खाना खा रहे हो तो खाना खाते खाते कर सकते हो. एंड इनफैक्ट यू टीचर्स ऑल्सो कैन यूज इट. आप कोई अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आप पॉडकास्ट आप सुन सकते हो. इट्स वेरी इजियर टू मेक. सिर्फ एक आपको एक रिकॉर्डिंग डिवाइस चाहिए जो आपका फोन भी हो सकता है, ठीक है, एंड इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आजकल सबके पास ऐसा डिवाइस है जिसमें ऑडियो तो रिकॉर्ड होता ही होता है. easier to listen to podcast for a longer duration than reading for a longer duration. अगर आप दोनों कंपेयर करते हो तो हम ज्यादा देर के लिए सुन सकते हैं, पर ज्यादा देर के लिए हम पढ़ नहीं सकते हैं. यू कैन क्रिएट स्टूडेंट कम्युनिटीज. बहुत सारी पॉडकास्ट वेबसाइट्स जो हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पॉडकास्ट लॉन्च करने देती हैं, उस पर आप स्टूडेंट कम्युनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स ही आंसर करते हैं. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है. लाइकवाइज
टीचर कम्युनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस जान सकते हो, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये टॉपिक में स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करूं, तो वो चीज भी आप कर सकते हैं. देन इट्स एन एक्सीलेंट लर्निंग टूल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, वेरी ऑफ कोर्स, बिकॉज विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगर आप टेक्स्ट बुक्स की बात करें तो ब्रेल जो आपकी है उसमें टेक्स्ट बुक्स आर वेरी लिमिटेड. तो these podcasts are very good because आपके पास ब्रेल वाले कीबोर्ड्स तो आते हैं जिसके साथ आप सर्च कर सकते हो, they can search on the internet with the help of braille keyboards, but ब्रेल वाली टेक्स्ट बुक्स इतनी नहीं है, तो सर्च करके आप पॉडकास्ट को सुन सकते हो. You can explore new territories, that means आज तक आपके इंस्टीट्यूट में क्या टॉपिक कैसे पढ़ाया जा रहा है वो चीज आप छोड़ के आप अगले यूनिवर्सिटीज अगले इंस्टीट्यूशंस को भी देख सकते हैं कि वही चीज वहां कैसे अडॉप्ट की जा सकती है, एंड यू कैन डू दिस. हमारे यहाँ पर तो इंडिया में नॉट वेरी पॉपुलर एज ऑफ नाउ, बट अगर आप नेट खोलेंगे और उस पर अपना कोई भी पसंदीदा टॉपिक डालें, आपको इतने रेडीमेड कंटेंट पॉडकास्ट के रूप में अवेलेबल मिलेगा जो कि मतलब बहुत ही अच्छा है, एंड दैट इज नॉट वन बोरिंग कंटेंट. ठीक है, उसको कॉमेडी की फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. सो देयर इज वन वेरी फेमस फिजिसिस्ट एंड अ कॉमेडियन जिन्होंने अपना एक फिजिक्स का पॉडकास्ट खोला हुआ है, आई फॉरगॉट इट्स नेम, तो वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी थोड़ी देर में. बट एक फिजिसिस्ट है और एक कॉमेडियन है और उनकी एक पॉडकास्ट सीरीज चल रही है जिसमें वो कॉमेडी के रूप से फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो वो फन भी है और उससे आपको प्रिंसिपल्स भी समझ आ रहे हैं. देन आप कैसे यूज कर सकते हैं एज टीचर्स, यू कैन सेट एग्जिस्टिंग पॉडकास्ट टू लिसन टू. कुछ नहीं करना है, अभी आपने खुद अपना नहीं अगर अपलोड भी करना है पॉडकास्ट, आप एग्जिस्टिंग पॉडकास्ट जो है उसके लिंक बच्चों को दीजिए या वो डाउनलोड करके उनके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. पॉडकास्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, कीपिंग स्टूडेंट्स अप टू डेट. कोई अनाउंसमेंट है पॉडकास्ट की, सबके ग्रुप्स में सेंड कर दी, दे कैन एक्चुअली लिसन टू इट. आजकल बच्चों की तो वेबसाइट्स भी ऐसी आ रही हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स की स्पेशली, दैट दे हैव रिकॉर्डेड दोस पर्टिकुलर सर्कुलर्स एंड दे आर सेंडिंग इट ऑन ऑडियो आल्सो, कि जिसको अगर मान लो किसी का पेरेंट जो है इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है, वो नहीं पढ़ सकता कि क्या लिखा है, तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन भी आ रही है. इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में दीज पॉडकास्ट आर नाउ बीइंग डेवलप्ड. पॉडकास्टिंग टीचिंग, repurpose lectures as podcast, that means आपका जो लेक्चर था साथ के साथ आपने रिकॉर्डिंग किया, उसको repurpose किया, उसी का एक पॉडकास्ट बना दिया. रिकॉर्ड कन्वर्सेशंस विद अदर, एक ही बंदे की आवाज सुन सुन के बोर हो जाते हैं. ठीक है, हम भी बोर हो जाते हैं, आप भी बोर होने वाले थोड़ी देर में मेरी आवाज सुन सुन के. तो अगर हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में हो, ठीक है, और आप वो कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके बच्चों को दीजिए, दैट मीन्स एक सिंपल सा टॉपिक है जो आप दो टीचर्स साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हो, वो बच्चों को दीजिए एंड इट विल बी मोर एंगेजिंग फॉर देम. यूज स्टोरी टेलिंग इन योर पॉडकास्ट. आप किसी भी तरह की स्टोरी टेलिंग से शुरू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का कोई प्रिंसिपल पढ़ाना है, केमिस्ट्री की बॉन्डिंग पढ़ानी है, तो हीलियम जो है बहुत ही अनफ्रेंडली और शाय नेचर का है, तो वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, इसीलिए उसका नाम नोबल गैस है. लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ना, वो इतना ज्यादा फ्रेंडली है, वो ओवर फ्रेंडली है, वो किसी भी ओल्ड एटम के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं. तो किसी भी तरह की आप स्टोरी के माध्यम से, मतलब ये नॉट नेसेसरली हायर एजुकेशन में ही कितना कामयाब होगा, उसके लिए आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन दिखानी पड़ेगी, बट डेफिनेटली छोटे बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है चीज. देन असाइनमेंट आप स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि स्टूडेंट्स आप टीम वर्क में काम करो एंड आप अपना खुद का एक पॉडकास्ट हमारे को दो. सो इससे वो बहुत लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग के जो स्किल्स होते हैं ना, वो सीख कर जाएंगे, क्योंकि वो टीम वर्क सीखेंगे. ठीक है, वो प्रिसाइज अपनी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनको एक बहुत ही क्लियर वे में बोलना है, अटकना नहीं है. वो अपनी स्पीच बनाएंगे, जो भी आपने रिकॉर्ड करना है वो पहले लिखेंगे. वो बनाने के लिए उनको रिसर्च करना पड़ेगा पहले. ठीक है, रिसर्च से उनको अपना प्रेसे लिखना पड़ेगा, उसको शॉर्ट करना पड़ेगा. तो बहुत सारे लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स जो हैं आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसे इम्पार्ट कर सकते हैं. और साथ ही साथ आपका असाइनमेंट भी हो गया ये, राइट. तो आप उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, और इवेल्युएट करने के लिए आपको देखना नहीं है, बस में घर जाते जाते बस आप सुन लीजिए, बच्चे के मार्क्स आप नोट कर लीजिए, कुछ नहीं देखना, कुछ टिक मार्क्स नहीं लगाने, और ये हो जाएगा. एंड दीज आर सम ऑफ द फ्री प्लेटफॉर्म्स वेयर यू कैन अपलोड योर पॉडकास्ट. सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं. फॉर एग्जांपल इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें आप एक ही चैनल सेट कर सकते हैं, उस चैनल के अंदर आप कितने नंबर ऑफ पॉडकास्ट डाल सकते हैं, कितने ड्यूरेशन का वो पॉडकास्ट हो सकता है, दैट ऑडियो कितने देर का हो सकता है, बस उतनी लिमिटेशंस हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. तो आप 500 MB तक किसी में डेटा स्टोर कर सकते हैं, किसी में 1 GB तक स्टोर कर सकते हैं. और एक बार ये आपने रिकॉर्ड कर लिए तो अगली फ्यूचर क्लासेस में कई बार होता है आपको सेम सब्जेक्ट्स मिलते हैं, आप ये दोबारा शेयर कर सकते हैं. एंकर, एकास्ट, पाइनकास्ट, पॉडबीन, तो सम ऑफ द फ्री प्लेटफॉर्म्स बेसिकली जो पॉडकास्ट के लिए यूज कर सकते हैं. देन एनिमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिंपल पीपीटी से तो बोर हो जाते हैं, एनिमेशन आ गई, चलो मैम की स्लाइड देखते हैं, कुछ अच्छा आ रहा है, राइट.
सम कॉन्सेप्ट्स आर देयर जो आप बोर्ड पे जितना मर्जी एक्सप्लेन करो वो नहीं समझ में आएंगे अनलेस और अनटिल आप बच्चों को उसकी एक एनिमेशन करके बताओ। मैं सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक एनिमेशन की बात कर रही हूँ जिसमें रियल ऑब्जेक्ट्स ने वीडियो नहीं की है, आप अपने कोर्स के हिसाब से आप खुद की एनिमेशन बना सकते हैं। बहुत सारे फ्री टूल्स हैं जो आपको वो देते हैं। सो बेनिफिट्स, improves the skills, improves the knowledge level, लर्नर की एंगेजमेंट एनहांस करता है बिकॉज योर स्टूडेंट इज नाउ एक्टिवली लुकिंग ऑन द स्क्रीन, emphasizes learning, इंटरैक्टिव लर्निंग है वो क्योंकि स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व विद दिस, एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम टूल जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हो कि बताना चाहते हो एटलीस्ट कि कैसे यूज कर सकते हैं, बट वो बहुत ही हाजार्डस कंडीशंस में यूज होते हैं तो आप नहीं समझा पाते कि बच्चे को कैसे यूज करना है इसको, तो आप एनिमेशन के थ्रू बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे को एक्सपीरियंस भी आ जाता है उस टूल को यूज करने का, एक फर्स्ट हैंड नॉलेज हो जाती है कि वो टूल कैसे यूज हो रहा है, लेकिन उसको उस हजार्डस एनवायरनमेंट में भी नहीं जाना है। इट फ्यूज द लर्नर इमेजिनेशन, राइट? It is very easily accessible, it is affordable, and animations are very much used for the administration for the purposes of advertisements also. So आप जहां पर भी हैं एनिमेशन आपकी एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट को अपर लेवल पर लेकर जाएगा। फ्री टूल्स आर देयर, एनिमेकर, ब्लेंडर, डेफिनेटली फ्री टूल्स हैं वेयर यू कैन डू योर एनिमेशन, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इन टूल्स में। रेडीमेड एनिमेशन भी आपको मिलेंगी, वो आप इसमें इंपोर्ट करके उनको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से, वो चीजें भी आप कर सकते हो। देन इंटरैक्टिव वीडियोस, हाँ जी सर। अपनी एनिमेशन नहीं भी बनानी है, आपके सब्जेक्ट के रिलेवेंट बहुत सारी एनिमेशंस आपको ऑनलाइन मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हो टू मेक योर प्रेजेंटेशंस, टू मेक योर क्लासरूम टीचिंग मोर इफेक्टिव। इंटरैक्टिव वीडियोस I'll just show you in a short while. मैं एक वेब पेज खोल के दिखाऊंगी आपको इंटरैक्टिव वीडियो का अभी। So audio visual experiences are in the form of videos, but these are not just normal videos, clickable videos where you just touch and click and it can take you to a newer web page, or it can just open a pop-up screen, or it can be another video, and several free tools are there. बहुत ही सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टूल्स हैं, आपको सिर्फ बताना है कि आपकी ओरिजिनल वीडियो क्या है, उसमें कौन सा बटन लगाना है, वो बटन लगाने से क्या एक्शन होगा। तो ये फ्री टूल्स जो है आपके वीडियो लेक्चर्स में बहुत काम आएंगे। इफ एनीबॉडी ऑफ यू इज हैविंग योर ओन यूट्यूब चैनल्स, तो आप अपने उन यूट्यूब चैनल्स को और एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज काइंड्स ऑफ इंटरैक्टिव वीडियोस। एडवेंट वायरवैक्स बिल्कुल फ्री है ये सर, इसी सिस्टम पे पड़ी है, आप जाते जाते लेके जा सकते हैं। हाँ जी सर। मैडम कोई केस स्टडी आपने की है किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड? On okay, I'll just show you right now. I'll have to messages में आया होगा। Yeah, I'll share this presentation in a short while online also. I'll give it to the कमल सर को दे दूंगी मैं और वो शेयर कर देंगे। मैडम आपने कोई केस स्टडी की है किसी इंस्टीट्यूट में कि उन्होंने पहले ही ऐसा था कि अप्लाई किया फिर इसके बाद उन्होंने? सर हम खुद ही केस स्टडी का पार्ट है। कौन से इंस्टीट्यूट? नहीं, हम खुद ही अपने ऊपर एक स्टडी किए हैं। तो आप खुद भी कर सकते हैं सर। नहीं, क्या हुआ सर? देखिए कोविड टाइम आया, हमने बहुत सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली, हमें कंपलसरी होती है ट्रेनिंग्स लेनी, हमने भी अटल की एफडीपीज लगानी शुरू की, अटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एफडीपीज लगाता है, तो हमने वो अटेंड करनी शुरू की। और होता था सर कई बार हम वो छोड़ देते थे। बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, उनके फ्री कोर्सेज ऑनलाइन पड़े हैं। कई बार लालच दिमाग में ये होता था, अर्लियर आई वाज विद प्राइवेट, पुरानी बात है, तो कई बार दिमाग में होता था कि मेरे पास इसको अभी पूरा करने का टाइम नहीं है, मैं वीडियो ना ऑन छोड़ देती हूँ और मैं थोड़ा सा इधर उधर होके मैं बाद में कैचअप कर लूंगी। पर सर आपको भी पता है, एक बार वीडियो वहां ऑन छोड़ दी तो कैचअप हम नहीं करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जितना मर्जी सोचे हम नहीं कर पाते कैचअप। इस बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव शुरू किया कर्मा योगी प्रारंभ के नाम से। उसमें मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं, जो भी न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं या स्टाफ मेंबर्स हैं उनको कुछ मॉड्यूल्स ट्रेनिंग के करने ही करने हैं। तो उनमें जब ये इंटरैक्टिव ट्रेनिंग्स आई तो हम हार के भी उसको आगे शिफ्ट ना कर पाए, क्योंकि हमें एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ा उसके साथ, क्योंकि वो हमसे एक एक मिनट के बाद एक एक सवाल पूछ रहा है और वो सवाल हमें सॉल्व जब तक हम नहीं करेंगे वो आगे बढ़ने ही नहीं देगा हमें। हाँ जी सर, हम ये करेंगे केस स्टडीज अभी। दिस नेटर बीइंग अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम ऐसी ही केस स्टडीज लेते हैं। तो अभी हम एक
पॉडकास्ट का कितना फायदा होता है? हाँ जी बच्चे सर, को हम मुझे नहीं इम्पैक्ट लगता- स्टडीज करते मुझे नहीं हैं लगता कि पॉडकास्ट का इतना फायदा होगा, क्योंकि वो तो यूट्यूब वीडियो देखते हैं। सर। आज की और अगर एक हाँ हाँ जी मैं हाँ जी। अगर मान लो सोच कर हमने कुछ मेहनत करके यूट्यूब वीडियो बना भी दी, तो जैसे ही बच्चे यूट्यूब वीडियो करने लगते हैं, एआई काम करती है पीछे, वो जस्ट कुछ बच्चों के इंटरेस्ट का कोई और वीडियो डाल देते हैं, फिर बच्चे अपने ध्यान से कर जाते हैं। सर ये चीज तो रहती है ना, वो यूट्यूब वीडियो पे तो रहती है, पर पॉडकास्ट में ऐसी नहीं रहेगी ना नहीं, फिर पॉडकास्ट से इतना इफेक्टिव रहेगा कि सर। ये ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है, जैसे पॉडकास्ट suppose इंडी मैडम हाँ हमारे जी मैकेनिकल के सब्जेक्ट हाँ जी हमें तो ग्राफिकली बताना पड़ता है। हाँ जी हमने रिकॉर्ड कर लिया हाँ जी। और बच्चे ने सुन लिया, फिर भी उसकी समझ नहीं आएगी। नहीं मैडम आएगी, जैसे बिल्कुल समझ नहीं engineering आएगी, drawing है, वो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। लेकिन उसको कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे आपके उससे कि आपने आज के लेक्चर में क्या क्या करवाया, क्योंकि आप बोलेंगे कि आज हम ऑटो कैड पे ये वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ऑटो कैड कराते होंगे, मुझे नहीं पता, मैं तो कराते जस्ट हैं। हाँ जी। तो आपने बोल दिया आज ऑटो कैड पे हम ये वाला एग्जाम्पल करेंगे, तो बच्चे के दिमाग में एटलीस्ट ये तो उसको पता चल गया कि आज क्लास में किया क्या है। और ये तो नहीं है कि सारा कुछ ही डेमोन्स्ट्रेशन बेस्ड होता है, कुछ तो सर मैकेनिकल में भी थ्योरी होती होगी। नहीं, वो तो होती है मैडम, पर तो मैं सुनने वाली उससे थोड़ा वो सर ये अभी सुनने का कितना फर्क पड़ेगा? नई चलन है सर इस चीज का। रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने टास्क ले लिया, आपने बच्चों को एक्सप्लेन कर दिया, साथ में आपने कुछ चीजें रिकॉर्ड कर दी। अब बच्चे ने वहाँ फिजिकली उसको अटेंड तो किया है, आपने जो पढ़ाया ड्राइंग फिगर जो भी बनाया बच्चे ने भी बनाया है ना। पर नहीं, जब वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने क्लास ही अटेंड नहीं की। नहीं सर, वो दूसरों के लिए भी रिवीजन तो दूसरों के लिए भी है ना, एज अ रिवीजन टूल तो सबके लिए है, हर चीज की रहेगी। फिजिकल में आप ही यानी इंग्लिश में ड्राइंग नहीं बनाते। नहीं, इंग्लिश में सिर्फ बोलने से काम चल जाता है, मैकेनिकल सिंगल से हाँ काम सर, चलता वही है। ना, सबके लिए तो नहीं हो सकता। एवरी टूल इज नॉट मेड फॉर एवरी सब्जेक्ट। ना, और इससे कुछ तो होगा ना, जैसे क्लास बेस्ड होगी, अगर हाँ, पॉडकास्ट बस किया ये तो हो कुछ भी सकता है, नहीं ना होने से कल टॉपिक्स क्या कवर हुए, क्या नहीं कवर हुए, कुछ तो पता चलेगा उसको। और उसमें से भी आपको कौन कह रहा है कि सब डालिए, आप थ्योरेटिकल पोर्शंस डालिए जो बच्चे ने रट्टे लगाने हैं बाद में, आप वो वाले पोर्शंस डालिए ना। मैकेनिकल में भी आई थिंक बहुत सारी डायग्राम्स डेफिनेशंस रट्टे वाली होंगी। कोई मुझे 15 बारी पढ़ के बताएगा ना, वो डेफिनेशन मुझे जल्दी याद हो जाएगी सुनने से। ये दूसरी बात है, जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, एक सर। घंटा की क्लास, तो 1 घंटे में सिर्फ पढ़ाते थोड़ी है। बहुत सारे तो उनको समझाते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, फिर वो भी रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड होगा सर, लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ कि फिर इसमें एडिटिंग द पॉडकास्ट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आपके फोन में ही कट क्लिप वाले पोर्शंस आते हैं जिसमें आप कट कर सकते हैं, उतने पोर्शन को क्लिप कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी नहीं देखना कि आप सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, आपका कैमरा एंगल क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि वो सिर्फ ऑडियो जा रहा है। तो वो बहुत इजी है सर, आपके फोन में ही हो जाएगा। हाँ जी सर, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे डेफिनेटली सर, being a research assistant I'll definitely take this up with my HOD after this tomorrow। आज से छुट्टी है तो tomorrow I'll take this up कि हम एक impact studies के ऊपर भी करेंगे और हरियाणा की ही स्टेट में करेंगे। बिल्कुल सर, प्री एंड पोस्ट हम करेंगे। हमें ये पता चलेगा ना हमारे प्रोडक्टिंग का फर्क क्या हुआ है। डेफिनेटली सर, I'll pass this message। जैसे आपने इतना सारा बताया, हाँ बहुत जी। सारी चीजें बताई, हाँ जी सर, इसमें से हमें कुछ भी अगर एक्चुअली प्रैक्टिकली करने काम समझाने की ये ऐसे करते हैं तो इसका ज्यादा बेनिफिट होगा। सर उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। आज मैं सिर्फ रिसोर्सेज बता रही हूँ, आप हमारी मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बाकी आने वाली STCs देखिए, मीडिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लेटर की वेबसाइट पे जाकर, उसमें आने वाली STC में हम यही समझाने वाले हैं। इसमें मैडम मतलब फुल कुछ टाइम प्रैक्टिकल 5 डे एसटीसी। हाँ जी 5 डे STC है। इमर्जिंग मीडिया, इमर्जिंग मीडिया के नाम से नहीं, आई थिंक इंटरेक्टिव मीडिया के नाम से है, और ये मई के महीने में ही है। जैसे हाँ जी, और ये आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं और फिजिकली भी लगा सकते जैसे मैडम आप 3D एनिमेशन में बात हाँ कर रहे हो ना, आप 3D एनिमेशन बोल दिया आपने, हमने सुन भी लिया, हैं, उसका भी पूरा कोर्स एक्चुअल है में बनाएंगे कैसे? सर। सब क्या हम कोर्सेज सीख हमारे सकते हैं मीडिया वो? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफर कर रहा है। जितने भी चीजें मैंने बोली हैं यही क्या आपको, एक हफ्ता सुटेबल है उसके लिए? हाँ जी सर, उतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जितने से आप शुरू हो सकते हैं। जैसे यहाँ तो हम आगे के लिए ऐसा भी होता है कि यहाँ से आप जाके इंस्टीट्यूट में आप लेक्चर डिलीवर करें या फिर टीचर को एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके आप मैम ऐसा होता तो है, बट उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको पता करके बता दूंगी। आप एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात Yes. करें कैसे यहाँ पे अपने कॉलेज में अकेले आए, पर एक एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं, कोई सिंगल टीम नहीं चलाता। अगर मैं ये चाहूँ कि आप हमारे कॉलेज में आए ताकि और भी लोग वहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये पॉसिबल है होता है मैम, लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है वो मुझे भी आपको पता करके ही बताना पड़ेगा। ये चीज होती है। हम ये ऑनलाइन चल रहा है तो वो भी सुनते हो आपके कॉलेज वाले। नहीं सर, लेकिन मैम ये ये होता है सर, ये होता है। हाँ जी हाँ जी। आपके
ये होता है मैम, होता है। हमारे दूसरे जगह पे जाकर भी लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। अगर हम कॉलेज से अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर रिक्वेस्ट करें, क्या ये है पॉसिबिलिटी? जी। जब भी आप उसकी कंडीशन जो होती है, आपका जो इंस्टीट्यूट है ना अप्रोचेबल होना चाहिए, उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना जी? ठीक है मैडम, कंटिन्यू कर अम्बाला में होते रहते हैं 4 बजे। इंटरैक्टिव वीडियो क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि क्रॉस डिवाइस लर्निंग है। आप वही वीडियो अपने फोन पे भी खोल सकते हैं, वही वीडियो आप अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। विंडोज से भी कर सकते हैं आप, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से, लिनक्स से, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप चला सकते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, दैट मीन्स जब तक बच्चे का एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो वहीं रुका रहेगा, वो एडिशनल हेल्प पे क्लिक करेगा और उस एडिशनल हेल्प से उसको टॉपिक को समझने की कोशिश करेगा, तभी जाकर नेक्स्ट क्लिक करेगा। कोई फास्ट लर्नर है आपकी क्लास में, वो क्या करेगा, उसको ये टॉपिक पहली बार में समझ आ गया, वो सीधा नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, उसको और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए इस टॉपिक पे। तो आप पर्सनलाइज भी कर सकते हो इसको। इंगेजिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बिकॉज एट द एंड आप बच्चे को फ्री नहीं छोड़ रहे हो कि वो सिंपली पैसिवली बैठ के बस वो वीडियो वॉच कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बच्चा क्लिक कर रहा है, बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बच्चा इज डूइंग एवरीथिंग। फ्लेक्सिबल लर्निंग है, ठीक है। कोई ऑप्शंस आप स्किप करना चाहते हैं, किसी बारे में एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज देना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है। बच्चे ने कोई सवाल का आंसर गलत दिया उस इंटरेक्टिव वीडियो में, तो बच्चे को फीडबैक जाएगा कि ये आंसर रॉन्ग है, आप दोबारा अटेम्प्ट कीजिए इसको। फिर बच्चे एक और आंसर देगा, तो उसका सही है तो बताया जाएगा कि ये सही क्यों है, गलत है तो तब भी बताया गया था कि ये गलत क्यों है। तो एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, ये नहीं वीडियो बनाते हुए वो डाल लेंगे। हाँ जी, इसका क्वेश्चन है, हाँ इसका जी, आंसर ये हाँ है, जी, अगर हाँ ये जी, है तो नो। हाँ जी, हाँ गूगल जी। फॉर्म जैसा ही। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, सिर्फ फीडबैक में ये नहीं बोला कि सही है कि गलत है, ये भी बताया कि सही है तो क्यों सही है, अच्छा, गलत है तो क्यों गलत है, ऐसा। वो तो हमें पहले पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी। डिटेल लिखनी पड़ेगी सर, स्टोरी बोर्ड तो आपको बनाना पड़ेगा। आप अपने कंटेंट का क्रिएटर है, स्टोरी बोर्ड तो आप ही बनाएंगे। माइक्रो लर्निंग, एक बड़े टॉपिक को छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में आप डिवाइड करके बच्चे को छोटे छोटे मॉड्यूल्स दे सकते हैं। एक लंबी वीडियो बनाने की बजाय 3-3, 4-4 मिनट की छोटी वीडियोस आप उनको दे सकते हैं। देन मोबाइल फ्रेंडली है, इजी टू एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आपको पता है कि ये क्या होती है, और ये कैंपस छोड़ने से पहले मैं जरूर चाहूंगी कि एक बार आप आके देखिए जरूर। अभी तो सर आज एक्चुअली छुट्टी का दिन है, तो कल देख लेना। हाँ जी, कल देख लेनी है। हाँ जी, हाँ जी सर, हम होंगे सर शाम को 5:30 तक यहीं होते हैं, तो आप देखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो इट्स यूजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये अभी अपकमिंग यूजेस है एडमिनिस्ट्रेशन में, बट दिस इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर हायरिंग एंड रिक्रूटिंग, बिकॉज हायरिंग एंड रिक्रूटिंग के ये बैंक्स ने यूज करना शुरू कर दिया है। हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट के वक्त में क्या होता है कि आपको एक बंदे का स्किल टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल के बंदे हैं, आपको हायर करना है हमने, लेकिन हमने आपका स्किल टेस्ट लेना है कि क्या आप हमारा इक्विपमेंट हैंडल कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब हम आपको ऑल द वे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक बारी बारी तो नहीं लेके जाएंगे कि आप अपना स्किल टेस्ट यहाँ के दीजिए। हम आपको क्या करेंगे, एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेडसेट, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट बनाएंगे, साथ में कंट्रोलर्स देंगे। आप कंट्रोलर से ऑब्जेक्ट्स अपने पिक करो या मशीन का गियर घुमाओ, जो भी जैसे भी आपकी मशीन ऑपरेट करती है वहीं करके दिखाओ, तो हमें वही पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है। वेटिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, ऐसे ही हम वेट करते हैं उनकी स्किल से। एम्प्लॉय ट्रेनिंग फॉर सॉफ्ट स्किल्स, मैम आपके लिए बहुत अच्छा है एम्प्लॉय ट्रेनिंग फॉर सॉफ्ट स्किल्स, क्योंकि आपने ये नोटिस किया होगा कि स्टूडेंट्स और इनफैक्ट टीचर्स आल्सो, दे आर अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, राइट। सामने एक ऑडियंस है तो वी ऑटोमेटिकली गेट दैट स्टेज फियर, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, ये वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स पे आपको कंप्लीटली ना आउटडोर एनवायरनमेंट से अलूफ कर देता है, तो आपको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, बाहर की साउंड भी नहीं सुन रही। तो व्हाट इज हैपनिंग इज यू कैन एक्चुअली चूज योर ऑडियंस साइज। आपके सामने एक ऑडियंस आपको नजर आएगी। इफ योर स्टूडेंट इज नॉट येट कंफर्टेबल विद अ लार्जर ऑडियंस, उसको एक छोटा ऑडियंस दीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। व्हेन द स्टूडेंट बिकम्स कंफर्टेबल इनफ, गिव द स्टूडेंट एन एक्सेस टू अ वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस, और फिर उसको एक्चुअल ऑडियंस के सामने भी लेकर जाइए। तो जो ऑडियंस एक्चुअली फील होती है, ये नहीं कि आपको कार्टून नजर आएंगे, you will feel the real audience there. So this is as a case study being used in foreign universities. आप प्लीज चेक कीजिए, आपके फील्ड में ये बहुत अच्छा है। देन करियर डेवलपमेंट एंड लर्निंग, आप बहुत सारी न्यू चीजें सीख सकते हैं अपने अपने फील्ड्स की विदाउट लीविंग योर वर्क प्लेस। अगर आपको गवर्नमेंट ये हेडसेट्स और ये सब कुछ लेके देती है, तो आप अपनी जगह से ही उन कंटेंट्स को देख सकते हैं, बाहर की मशीन्स ऑपरेट कर सकते हैं, वर्चुअल टूर्स पे जा सकते हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकता है ये वर्चुअल रियलिटी आपको। makes learning very immersive because आपको एक इन डेप्थ एक्सपीरियंस हो गया, यू फील लाइक यू आर रियली स्टैंडिंग देयर। आपने मॉल्स में देखा होगा,
जो फन जोन्स बने होते हैं, उसमें फन जोन में एक वो जगह होती है जहाँ पर वो ना एक ओवल शेप का एग शेप्ड एक सीट होता है और उसमें आपको बिठा देते हैं और दे मेक यू यू नो शो अ वीडियो ऑफ रोलर कोस्टर या समथिंग, ऐसी वीडियो दिखाते हैं। तो आप एक्चुअल में देखा होगा कि लोग डरते हैं, आवाजें निकालते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में आप भूल जाते हो कि आप कहाँ हो। ये चीज आपकी रहती है। इट लीड्स टू इनहैंस मेमोरी रिटेंशन अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि वही पुरानी सेइंग होगी कि मुझे बोलोगे तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे करके दिखाओगे तो मुझे शायद याद रह जाए, लेकिन अगर मुझे एक्सपीरियंस करवाओगे तो मुझे पक्का याद रहेगा। राइट, ये पुरानी सेइंग तो है, तो उनको एक्सपीरियंस करा दिया इससे आपने, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिमेंबर दैट थिंग। It's a great aid to students with learning disabilities. It dissects and simplifies complex topics and concepts for better understanding. आपके पास कोई मशीनरी है विच इज डेंजरस कि बच्चे उसको एक्चुअल इन्वायरमेंट में जाके यूज करें, आप नहीं चाहते कि बच्चे खुद एक्सपीरियंस करें, आप दूर से इनको दिखा देते हैं बेटा ये हमारी वर्कशॉप है, ये हमारी लैब है, इसमें हमारा ये इक्विपमेंट ऐसे चलेगा ऐसे चलेगा। दे आर नॉट लर्निंग बिकॉज वो खुद ट्राई नहीं कर पा रहे हैं। ये वर्चुअल हेडसेट से आप उनको एक वर्चुअल लैब में लेकर जाएंगे, वहां वो चलाएंगे भी वो इक्विपमेंट, क्योंकि उनको कोई हार्म नहीं हो रहा है उस इक्विपमेंट से, या वो इक्विपमेंट टूट नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास वीडियो भी तो होनी चाहिए और आपके पास वीडियोस हैं। आपके पास नेट पे दो तरह की चीजें हैं सर, एक तो है खाली वीडियो, एक है इंटरैक्टिव कंटेंट। दो डिफरेंट चीजें हैं इसमें, मैं आपको बताना चाहूंगी। जो वीडियोस है आप सर्च कीजिए 360 डिग्री वीडियोस, यूट्यूब पे आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए 360 डिग्री वीडियो को सर्च कीजिए। उसमें आप अगर आपके पास अगर मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है बेसिकली, तो स्मार्टफोन में यूट्यूब में अगर आप उसको यूट्यूब को फोन को आड़ा तिरछा करेंगे तो आपकी वीडियो भी हिलती हुई आपको नजर आएगी, सारे एंगल से ऊपर से नीचे से आपको नजर आएगी। तो जो ये हेडसेट है वो मोबाइल के साथ अटैच हो जाएगा? मोबाइल से अलग होता है सर, वो एक बार कंटेंट उसमें डल गया तो आपका हट जाता है वो हेडसेट, आप मोबाइल से दूर रहेगा वो, एक बार कंटेंट उसमें डालना होता है। डाउनलोड करना होता है। एक तो होगी खाली वीडियो, एक है जब आपने उसको इंटरैक्टिव बनाना है, वो आपको खुद बनाना होता है। लेकिन यस, अभी इतनी टेक्नोलॉजिकल मतलब चीजें आपको नहीं पता होंगी, तो उसको इंटरैक्टिव कैसे बनाना है वो आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि वो कोई मशीन पार्ट उठा ले या कोई टेस्ट ट्यूब उठा ले, तो वो आप नहीं करवा बना पाएंगे वो वाला कंटेंट अभी के लिए, क्योंकि आपने उस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना पढ़ा नहीं है। उसके लिए भी पहले से कंटेंट जो एग्जिस्टिंग है या तो आप वो डालेंगे, जैसे गेम्स आती हैं वो आपने तो नहीं बनाई है, टेनिस खेलने वाली गेम, क्रिकेट खेलने वाली गेम, वो कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो आपने डाउनलोड कर दिया, और उसमें इंटरैक्टिविटी है, आप खाली पैसिव व्यू नहीं कर रहे हो, उसमें इंटरैक्टिविटी है। जैसे आप देखना चाहते हो कि हमारी बॉडी में फूड जो है डाइजेस्ट कैसे होता है, तो यूट्यूब पे सर्च मारो 360 डिग्री फोटो वीडियो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो एकदम आपको दिखाएगा कि फूड कहाँ से पास होता है, कैसे होता है, और किसी भी एंगल में देखेंगे आपको इनसाइड, यू आर इनसाइड ऑफ दैट ह्यूमन बॉडी। तो आप ये चीज अपने बच्चों को दे सकते हैं रेलिवेंट कंटेंट के साथ। आप सर्च करिए 360 डिग्री वीडियोस, बच्चे अपने फोन पे खोल सकते हैं। अगर वो लैपटॉप में या पीसी में खोल रहे हैं, तो वो लैपटॉप या पीसी में तो गायरोस्कोप नहीं होता, वो तो हिला नहीं पाएंगे, तो वो माउस से क्लिक करके सारी डायरेक्शंस में देख सकते हैं। तो यूट्यूब सपोर्ट करता है हमारा 360 डिग्री कंटेंट को। इट प्रमोट सेल्फ लर्निंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे ने उसको हर तरह से देख लिया। एक आपकी मोटर है, मशीन है कोई, उसको ऊपर नीचे आगे पीछे सब डायरेक्शन से उसने देख लिया, तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ आने लग गया। इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस इन द लर्नर, क्योंकि बच्चे को पता है कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मेक्स रिमोट लर्निंग एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। अभी भी आज की डेट में जो बच्चे रिमोट लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए 360 डिग्री कंटेंट हो गया या वीआर कंटेंट हो गया, दैट इज वेरी इमर्सिव। वीआर कंटेंट को हम अभी इतना प्रमोट नहीं कर रहे क्योंकि वीआर हेडसेट्स काफी कॉस्टली होते हैं, 30-40 हजार का एक हेडसेट आता है, तो दीज आर वेरी कॉस्टली। तो आप सिर्फ 360 डिग्री वीडियोस कर सकते हैं अभी वीआर कंटेंट के लिए, और ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट के लिए तो सबके पास फोन होता ही है, तो सब वो यूज कर सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी कंटेंट आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इतने आसान है कि आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, एक चीज को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना है और आपकी एप्लीकेशन तैयार है। ये चीज है। सोशल मीडिया यूज केसेस, फेसबुक ट्विटर आपको पता है कि आप भी यूज कर सकते हैं, बच्चों को अनाउंसमेंट्स करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो आई जस्ट क्विकली स्किप ओवर दीज थिंग्स। व्हाट्सएप पे आप यूज करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, हर क्लास का एक ग्रुप बना सकते हैं या अपने सब्जेक्ट का एक ग्रुप बना सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस का ग्रुप बना सकते हैं। इसमें भी एक चीज को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, द लास्ट पॉइंट हियर, ऑटोमेशन यूजिंग व्हाट्सएप एडटेक चैटबॉट। तो व्हाट्सएप के भी चैटबॉट्स आते हैं, ये एआई बेस्ड होते हैं। व्हाट्स आर बेसिकली रोबोट्स, चैटबॉट वो वाला रोबोट होता है जो आपका बात कर सकता है, चैट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली चैट की जाए
इंस्टेड ऑफ आप मैनुअल रिप्लाई करो, ऑटोमेटिकली अगर आपके बिहाफ पे चैट हो जाए, स्पेसिफिकली यूज बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये चीज आपकी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ने क्वेरी की तो क्वेरी का ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो उसके पास हैं. एक जो आपका वो FAQs की लिस्ट है वो उसके पास है, उसमें से उसने जस्ट कंट्रोल F मार के सर्च किया, बॉट ने, आपका AI बेस्ड टूल है, उसको वहां से आंसर दे दिया. दैट्स इट. तो ये चीज होती है. और आप जितने भी, जैसे Amazon पे अगर आप शॉपिंग करते हैं, अगर को आपको कस्टमर केयर से हेल्प चाहिए, तो वहां पर 2 ऑप्शन होती है, डू यू लाइक टू चैट और डू यू वांट टू टॉक. तो आप, आजकल की जनरेशन तो चैट पे ही ज्यादा असर डालती है ना, क्योंकि हमें एक अननोन बंदे से चैट करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है एज कम्पेयर टू अननोन बंदे से फोन पे बात करना. तो हम उसको कहते हैं कि हमें चैट चाहिए, तो वो हमें ऑप्शन अगला देता है कि कौन से ऑर्डर से रिलेटेड आपको क्वेरी थी. तो हमारे पिछले 3-4 ऑर्डर हमें दिखा देता है जो भी हमने किया. आप ट्राई करना अपना कभी, तो वो आप ऑर्डर उसमें से बस क्लिक करते हो और उससे पूछ लेते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम के भी डेफिनेट आंसर्स उसने लिखे होते हैं, तो अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन वन स्पेसिफिक प्रॉब्लम. और इस तरह से अगर वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाता है तो ठीक है, नहीं तो एट द एंड वो बोलता है कि प्लीज वेट, आवर कस्टमर एग्जीक्यूटिव इज गोइंग टू कॉल यू. तो इससे उनका भी लेबर बचता है, क्योंकि उनको अब इतने सारे कस्टमर्स के लिए अपने कर्मचारी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका होल्ड वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा रहता था पहले. आपका कॉल 10 मिनट के लिए कतार में है, आपका कॉल 6 मिनट के लिए कतार में, ऐसे ऐसे करके 1 मिनट पे आता था, फिर आपकी बात हो पाती थी. तो अब चैट ने वो काम आसान कर दिया, और चैट भी इंसान नहीं बैठे चैट करने के लिए, ऑटोमेटिक बॉट्स, AI बेस्ड बॉट्स बैठे हैं करने के लिए. और ये भी अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, कोई CSC फील्ड वाला है, तो ये बहुत आसान है बनाना. इवन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी बहुत आसान है बनाने में. टेलीग्राम सिमिलर टू व्हाट्सएप, लेकिन इसमें ग्रुप साइज ज्यादा बड़ा रह सकता है. और ये स्ट्रिक्टली आपका एक मतलब लाइक, तो उसमें व्हाट्सएप में तो आपके घर वाले वो भी रहते हैं, सब कुछ रहता है. इसमें आपका सब कुछ प्रोफेशनल अलग हो सकता है. तो टेलीग्राम. देन फ्लिकर, इंस्टाग्राम, अगर आपके इंस्टीट्यूट के इवेंट्स वगैरह कुछ हो रहे हैं, उसकी फोटोग्राफ्स आप डायरेक्ट शेयर करेंगे तो सारे स्टेक होल्डर्स के पास पहुंच जाएंगे, बच्चों के पास, एलुमनाई के पास, बच्चों के पेरेंट्स के पास, सबके पास पहुंच जाएंगे. तो आपके इंस्टीट्यूट की ही पब्लिसिटी और ज्यादा होगी. देन AI बेस्ड मीडिया चैट टूल, चैट GPT, जो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो आप ट्राई कीजिए इसको. ये आपका एज अ टीचर आपके लिए कंटेंट क्रिएट भी करेगा, आपकी ग्रामर भी चेक करके देगा, आपको प्रूफ रीड भी करके देगा, बच्चों को फीडबैक भी दे देगा कि बेटा आपके इस वाले मतलब जो आपने सबमिशन दी है उसमें ये एरर्स थी, वो भी आपके लिए आसान कर देगा. टीचिंग राइटिंग स्किल्स, बच्चों को राइटिंग स्किल्स भी ये सिखाएगा कि आपने अगर अपनी अगली रिपोर्ट देखनी है तो कैसे लिख सकते हो. ग्रेडिंग, इट विल मेक इट इजियर फॉर यू, नॉट फॉर द टेक्निकल डोमेन्स, बट मैम आपके लिए ग्रेडिंग इजी कर देगा, क्योंकि आपकी ग्रामर वगैरह तो इसने वैसे ही चेक कर दी ना, तो आपको वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. It can design the syllabus outlines for the administrators. For students, they can get help in homework. ये नहीं है कि पूरा का पूरा होमवर्क कर देगा, असिस्टेंस देगा. अल्टीमेटली ये भी एक बॉट है, ये गलती कर सकता है, ठीक है. तो वो चीज है. रिसर्च करने में बहुत हेल्पफुल रहता है. जैसे आप में से कोई अगर आप अपना PhD रिजर्टेशन लिख रहे हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल टूल है. हमारे टाइम तो नहीं था ये. लैंग्वेज लर्निंग, इफ यू वांट टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो इट विल मेक इट इजियर फॉर यू. एंड मैनेजमेंट के लिए, for generation of new ideas of how to improve their efficiency or any other idea generation, they can help it here. मैं ना जल्दी से आपको कुछ मीडिया टूल्स के बारे में बताना चाहूंगी जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं. असेसमेंट्स के लिए 3 प्लेटफॉर्म्स हैं. हॉट पोटैटोज एक सॉफ्टवेयर है जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगी. बाकी दोनों जो है क्विजेज या मेंटीमीटर, ये ऑनलाइन क्विज प्लेटफॉर्म्स हैं. तो इससे बच्चों को आप इंटरेक्टिव क्विजेज दे सकते हैं. तो आप लाइव क्लासरूम में बच्चों को बोलेंगे कि अपने पीसीज पे या अपने लैपटॉप्स में आप या अपने मोबाइल फोन्स पे, अगर आपको अलाउड है, आप क्विज शुरू करो, और उतने ही टाइम में आप अपने लैपटॉप से क्विज शुरू करेंगे, और जितनी देर आप देना चाहते हैं बच्चे को उतनी देर ही मिलेगी वो क्वेश्चन को आंसर करने के लिए. ऑनलाइन प्रेजेंटेशंस के लिए उनको कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैनवा. इनफैक्ट दिस वेरी प्रेजेंटेशन इज मेड इन कैनवा ओनली, ठीक है. तो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग तो आप भी खुद कैनवा यूज कर सकते हैं. उसके दोनों तरह के वर्जन रहते हैं, फ्री वर्जन एंड पेड वर्जन. फ्री वर्जन में लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें आप बना सकते हैं. देन कॉपीराइट फ्री स्टॉक वीडियो एंड हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यू हैव दीज वेबसाइट्स. पिक्सेल्स वीडियो. We are over with this particular session, and we'll definitely provide you with the PowerPoint presentation. In case you have any other queries, do let us know on the email which has been provided to you. Thank you so much. Okay, ma'am. Thank you.